सो LILD डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया था. वी हैव एनी फाइनाइट सेट. ठीक है. वी हैव एनी फाइनाइट सेट, देन सेट ऑफ वेक्टर्स S subset of B, suppose finite, very important, x1, x2, xn. Then for any choice of scalars a1, a2, an, a1 x1 plus a2 x2 and so on, summation ai xi is a linear combination of xi's. तो linear combination किनका बनता है? finite vectors का linear combination बनाते हैं. How? Choosing various scalars we get this sum called linear combination. Clear? And this is always a vector. So x equal to summation ai. Xi is a vector. ai xi, I vary from 1 to n. Then x is nLC of x1, x2, xn. ठीक है. x is a linear combination of x1, x2, xn, or it is an LC of xi's. Done. तो जब भी आप a1, a2, an बदलते रहेंगे आपको नए नए LC मिलते रहेंगे, है ना, डिफरेंट. हाउ मेनी LC पॉसिबली यू कैन गेट? एज मेनी एज चॉइसेस ऑफ a1, a2, an. अगर a1, a2, an किसी फाइनाइट फील्ड से आ रहे हैं, देयर विल बी फाइनाइट चॉइसेस. सो सच x विच वी कैन ऑब्टेन एज ऑलवेज फाइनाइट, है ना. सिंस कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड इज ऑलवेज सम पावर ऑफ p square, etc. So for each ai there are, suppose p square means, so for each ai there are p square choices. So p square into p square, how many times? n times. P is power 2n is the total number of possibilities. If there is repetition, then maybe less, but can never be more than p raised to power 2n. Done. और zp फील्ड है मान लीजिए, तो p power n ही आ जाएगा. So these are such, if we collect all such linear combinations, then this collection is a subset of V and denoted by LS, है ना, where S equal to x1, x2, xn. This is LS. We have definition of vector space and vector subspace, which we can prove easily. It is a subspace of V. Choose any two element. मान लीजिए y1 and y2 belong to this, then y1 will be summation some ai xi and y2 will be summation bi xi. Now take any alpha, any beta y2. This will be summation alpha ai plus beta bi xi summation ci xi. So this is again linear combination of this same set. So it belongs to LS. LS is collection of all such. So it is a subspace. Now fundamental one step test. So for any non-empty set S, if we take finite set, in fact finite set S, then LS is a subspace, which we have proved. Even S is infinite, then also LS is a subspace. But in that case, what is definition of LS? LS is collection of all possible linear combination of all possible subsets, finite subsets. वो तो नहीं का होने वाला है, तो उसको LS इन दोनों में हो गया. फिर आपने LS को और डिफाइन किया थोड़ा सा ज्यादा तमीज से, यूजिंग इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस इज सबस्पेस. LS is the subspace of V generated by S is the new definition of LS. LS is the subspace generated by S. Spanned by S यहां ज्यादा यूज होता है बजाय जनरेशन के. LS is the set, और इसलिए बोलते भी लीनियर स्पैन है इसको. तो LS is the subspace spanned by the set S. और जब स्पैनिंग होती है, जनरेशन होता है, तो वो केवल इसके एलिमेंट यूज कर सकता है, उसके बाहर से तो यूज नहीं कर सकता वो. इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, नो अदर वेक्टर इज इन्वॉल्व. एनी वेक्टर इफ इट इज इन्वॉल्व इन दिस स्पैनिंग मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर ओनली. ट्रू. सो इट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय स्पैन बाय S. और इसी को जब स्मॉलेस्ट बोलते हैं ना, तो इंटरसेक्शन से यूज होता है. इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दो सब स्पेसेस विच आर कंटेनिंग S. तो वो जो इंटरसेक्शन ये था, ये एक कंटेनिंग W, ये उनका इंटरसेक्शन है उन सारे सब स्पेसेस का जो S को कंटेन कर रहे हैं, और ये बनता है मेरा LS. एक ये मोस्ट जनरल डेफिनेशन. ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, आइडियल जनरेटेड बाय
S. It is intersection of all the ideals containing S. Ideal denoted by A, principal ideal. It is intersection of all the ideals containing A. है ना, ऐसे बोलते हैं उसको वहां पर भी. A जिस भी आइडियल में चला जाता है, सारा आइडियल उसमें कंटेन हो जाता है. ऐसे ये S जिस भी सब स्पेस में जाएगा, ये भी उसका सब स्पेस बन जाएगा. एक ये डेफिनेशन हम लोग देखिए. इसी को पढ़ते समय ये आइडिया आया था कि LS वो सब स्पेस है V का जो S से स्पेन हुआ है. क्वेश्चन ये है कि LS को बनाने के लिए क्या S के सारे एलिमेंट यूज हो रहे थे? सिंपल क्वेश्चन. या कुछ हम खामा ढो रहे हैं, उनको वहां नहीं भी होते उस सेट में S में. मेरा खामा का सेट S भारी हो रखा है, कुछ एलिमेंट बाहर कर देते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का हो जाएगा. बट वो जिसको बाहर करेंगे वो तो ध्यान रखेंगे ना, कौन. क्लियर. तो उसके लिए टर्म आता है LILD, जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग डेवलप किया. तो ये कहलाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस. उससे आगे बढ़े. अब अगर सारे AI 0 हो जाए तो ये X हमेशा 0 आएगा. इसे कहते हैं ट्रिवियल कॉम्बिनेशन, ट्रिवियल LC, TLC. लेकिन 0 प्रोड्यूस करने के लिए सारे कोफिशिएंट का 0 होना जरूरी तो नहीं है. कुछ एग्जाम्पल देखे गए हैं, बिना सारे कोफिशिएंट 0 हुए भी तो 0 आ रहा है. तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को, जिस फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स को हम LD बोलते हैं, अगर हम 0 वेक्टर बिना TLC प्रोड्यूस कर सकें. इफ 0 वेक्टर कैन बी प्रोड्यूस विदाउट TLC फ्रॉम एनी फाइनाइट सेट, दैट फाइनाइट सेट इज कॉल्ड LD, लीनियरली डिपेंडेंट. और कोई भी सेट LD होगा अगर उसके पास एक भी सबसेट LD मिल जाए. A set, any set, finite, infinite, whatever, that we know finite set की डेफिनेशन मेरे पास आ चुकी है. And any infinite set is LD if it has an LD subset. LD आपने फाइव में डिफाइन किया है. और there is a finite subset which is LD, which can produce 0 vector as non-TLC. ठीक है, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन. क्लियर है ये? तो जब 0 वेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है बिना TLC के, तो कोई ना कोई एक कोफिशिएंट नॉन जीरो है हमारा. तो वही कोफिशिएंट WLG अगर X1 भी है तो इट इज समेशन BI XI हो जाता है. इसको उधर ले गया, उसका इनवर्स किया. ये इफ एंड ओनली इफ है. अगर ऐसा है तो इधर ले आओ, तो यहां क्या आ गया 0, और यहां पर कोफिशिएंट X1 क्या है -1, कोफिशिएंट X1 -1, तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 एंड वन ऑफ द कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, तो नॉन TLC. और अगर ये हो रहा है तो यहां ये इफ एंड ओनली इफ है ना. If TLC of a non-TLC of a set of vector is 0, implied by there is a vector among them which is linear combination of the rest of the vector. तो इसको क्यों ढोएंगे हम? इसको बाहर कर दें अगर इस वेक्टर को, तब भी जो बाकी बच्चे हैं वो सब स्पेन कर लें जो पहले स्पेन हो रहा होगा, क्योंकि इसको भी वो कर सकते हैं. Isn't it? तो ये हमारा LD कॉन्सेप्ट आया. तो a set is LD if and only if it has an element which can be obtained as a linear combination of some finite vectors. Simple. Any set is LD if it has a vector which is linear combination of some finite vectors in the same set. ठीक है. Hence empty set is not LD. Empty set is not LD. क्लियर? हाँ, दिख गए. ठीक है. एम्प्टी सेट इज नॉट LD. खतरनाक है ये सच में. हमको क्वेश्चन ऐसे मैप हो जाते हैं, कभी उठपटांग क्वेश्चन पूछोगे ना तो 2-3 साल तक याद रखेंगे. फोन पर ही बोल देंगे तुम तो वही हो ना, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मिलो बताते हैं तुमको हम. कल मुझे एक क्वेश्चन चलते किसी ने पूछा, चलते यही फायदा है. मैं बताऊं ना कि आई एम सो हैप्पी विद माई क्लासेस. आपका पता नहीं क्या होता है, बट मैं हर रोज आपसे कितना कुछ सीख के जाता हूं, उसके पैसे मिलते हैं एट द एंड ऑफ ईयर. सोचो, दिस इज अचीवमेंट कि मैं जो सीख रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, जिस चीज मुझे एंजॉय कर रहा हूं, सब कुछ वो हो रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं एंजॉय करने के. अब सोच, कल चलते बच्चा पूछा, सर वो पॉपकॉर्न का बाउंड वेरिएशन नहीं चेक किया हम लोगों ने. हमने तो कभी नहीं चेक किया था. पॉपकॉर्न फंक्शन बाउंड वेरिएशन है कि नहीं है, इस बच्चे ने पूछा बैच 2 के. मैंने ठीक है, मैं अभी नहीं ट्राई करता हूं उसको, मैं लेकिन जब ट्राई, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं किया, तो क्लास का टाइमिंग बचाना है मेरे को, क्योंकि स्ट्राइक भी नहीं कर रहा है. अच्छा, सुबह आ रहा था तो मुझे पता है मैं बैच 2 में जा रहा हूं, अब वो मिलेगा फिर पूछेगा मेरे को. तो मैं वहां से सोचता होता रहा था यार कुछ तो है, बट बहुत फंडामेंटल फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, पॉपकॉर्न के बारे में ठीक ठाक जानते हैं. और एक सेकंड में स्ट्राइक भी कर गया, इट्स मैटर ऑफ चांस कि वो स्ट्राइक कर गया कि अच्छा हाँ ये नहीं है बाउंड वेरिएशन. तो जाके मैंने क्लेम किया उसको कि नहीं है बाउंड. सर कैसे नहीं है? मैंने सिंगल पार्टीशन. वो कैसे स्ट्राइक किया होगा कि हम लोग जब इसका कर रहे थे x sin 1/x का कि बाउंड वेरिएशन नहीं है, हमने एक पार्टीशन लिया और उस पर दिखा दी समेशन, जो सीरीज आई थी वो मेरी अनबाउंडेड आ गई, डाइवर्जेंट आ गई थी.
क्यों ना इसमें भी ऐसे ही कुछ दिखा दूं मैं एक पार्टीशन में, जिसमें वो क्या आ जाए, डाइवर्जेंट, कोई एक वेरिएशन किसी एक पार्टीशन पी पे एन के टर्म्स में वो डाइवर्जेंट आ जाए, मेरा काम खत्म। तो मैंने जीरो, मुझे आइडिया इसलिए आपको दे भी रहा हूं, 1/n 1/n-1 एंड सो ऑन 1/2 1। ये भी तो पार्टीशन है कि नहीं है पार्टीशन। इस सब के बीच में मैंने एक एक और ऐड किया, देखना इसके बीच में x1 y1 और इसके बीच में y2, ऐसे सब में ऐड कर दिया। ये कौन है y1? ये इरेशनल है। ये कौन है? इरेशनल है। एंड डन। ये भी तो पार्टीशन है कि नहीं है? पहले एक पार्टीशन ये लिया, फिर एक ये ले लिया और इनका यूनियन, तो दिस माइनस दिस, ये तो जीरो रहेगा इन सब पे। तो f1 f12 ये क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस, वो तो वैल्यू वही आ रही ना, तो वो समेशन जो VFP क्या आएगा हमारा, समेशन 1/n ही तो आएगा, और ये डाइवर्जेंट है। तो अब कोई भी अब सुप्रीम लेंगे तो भी तो इन्फिनिटी आएगा। दैट मीन्स टोटल वेरिएशन इज नॉट फाइनाइट, हेंस दिस इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। पॉपकॉर्न इज नॉट ऑफ डीबी। हाँ, पॉपकॉर्न बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। क्लियर? मतलब वही कि ये मैंने इससे पहले कभी ध्यान भी नहीं गया होता, वो बच्चा कौन सा क्वेश्चन पूछते वो वही जानते हैं, बट दे कीप ऑन एडिंग मी। मुझे जैसे उस क्लास में मिला, मैंने आके आपको शेयर कर दिया, ठीक है, बट हाँ उसके रेफरेंस में शेयर किया मैंने, ये नहीं बताया कि मेरे अचानक ज्ञान हुआ मेरे को। उसने पूछा था, देन वी ट्राइड, और वो भी दिमाग में रहना तो चाहिए। अगर यही आपको भी होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कहा ठीक है वो ना सॉल्व हो, उसके जैसा आसपास कुछ तो किया होगा ना, जिनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। सिंपल कॉम्बिनेशन दैट मे नॉट बी लीनियर, बट इट इज जस्ट, मुझे वो आइडिया था ना मेरे पास x sin 1/x वाला, कि अगर अनबाउंडेड दिखाना है नॉट ऑफ बाउंड वेरिएशन, तो समेशन 1/n जैसा मिल जाए अगर एक भी वेरिएशन किसी भी पार्टीशन पे, तो मेरा काम वही खत्म हो गया। और यही दिमाग में क्यों आ रहा है कि वो f(x) 1/q 1/n जैसा वहां मिलता है हमको, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये पार्टीशन लेता तो जीरो आ जाता, क्योंकि दोनों वैल्यू यहां पर 1/2 वहां पर 1, तो नहीं, साइड 1/2 माइनस 1/3 1/6, फिर 1/3 माइनस, तो वो वहां पर हमारा शायद टेलीस्कोप भी बना सकते हैं उस फॉर्मेट में। तो हम ऐसे करते आते तो कैंसिल हो जाता, तो वो एक फाइनाइट नंबर आता। उससे तो प्रूफ नहीं होता ना, किसी एक पार्टीशन पे आपने दिखा दिया, उससे तो प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। गॉट द आइडिया? सो जो टर्म हमारे पास आ रहे हैं लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की, पर्पस क्या था उनका, LS में स्मॉलेस्ट s ढूंढना, LS में जो पूरे LS को बना, खामखा उन एलिमेंट को नहीं हमको ढूंढना है जो किसी और से स्पैन हो जाते हैं, इसी को कहते हैं जो किसी और पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए वो सेट LD बन जाता है। फिर हम लोगों ने ये किया कि अगर ऐसा नहीं है, LD नहीं है, तो मतलब क्या है, एक ही मतलब निकल के आ रहा है, अ सेट इज नॉट LD इफ जीरो वेक्टर कैन बी ऑब्टेन एज ओनली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर ये डेफिनेशन में उठाऊं, a set is said to be LD if zero can be produced from the set as non-TLC। तो नेगेशन क्या हो जाएगा, TLC is the only way to produce zero vector, ठीक है। और जो नॉन LD है इसको हम LI बोल रहे हैं। तो इफ एंड ओनली हो गया, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लास, कॉम्प्लीमेंट क्लास बन गई, LD हो गया, LI हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर किसी और से नहीं बन सकता। If any set is not LD, that means Li here, in that set, no vector can be written as linear combination of any other vectors or any subset of that vector। क्योंकि जैसे ही एक बार भी लिख गया, तो this x equal to summation AIXI, इसको इधर लेके जाएंगे, -1 कोफिशिएंट आया, और ये TLC में एक कोफिशिएंट -1 है। जब भी कोई x ऐसे बनेगा AIXI, तो इससे तुरंत हम ये कह देंगे AIXI माइनस x इक्वल 0। इट इज समेशन, इसको x को नाम देते हैं x0, तो समेशन BIXI, नाउ I वेरी फ्रॉम 0 to n, एंड B0 है वो नॉन जीरो है। और आया क्या, जीरो वेक्टर कंफर्म। तो LI समझ में आ गया हमको, LD समझ में आ गया। जो सेट LI होते हैं उनमें कोई भी किसी से नहीं बन रहा होता है, जो सेट LD होता है उसमें कम से कम एक जरूर होता है, एंड रिमूविंग दैट एलिमेंट does not change the spanning or generation potential। अभी भी उतना ही जनरेट करेगा वो, एंड सो ऑन। क्लियर? डन। यहां से आगे बढ़ते हैं।
एल आई एल डी चेक करने कुछ एग्जाम्पल हम लोग इकट्ठे कर रखे थे कि ये एल आई है कि नहीं है। आपको आइडिया है कैसे चेक करते हैं? एल आई एल डी एक साथ ही चेक होगा, एल आई है कि एल डी है, एक ही स्टेटमेंट, राइट अ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो वेक्टर इफ इट कम आउट टू बी टीएलसी एल आई, इट इज नॉन टीएलसी एल डी। सिंपल यही है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले ए इट पावर एक्स प्लस बी इट पावर 2x प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन, राइट में क्या लिखना होता है? जीरो वेक्टर। तो वो पहचानना चाहिए हमको, वो क्या है यहां पर? जीरो फंक्शन। ये वो फंक्शन है, कुछ भी एक्स रखो यहां जीरो आएगा, तो यहां कुछ भी एक्स रख दो मैं जीरो आएगा। मैंने एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया तो ये आ गया ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ गया, पक्का ना? मैंने रख दिया यहां पर x इक्वल टू log 2, होशियार हूं ना? log 1 रख दिया ना, अब log 2 रख दिया यहां पर, तो a प्लस सुंदर हो गया ना। यहां से यहां log 2 रखो तो क्या हो जाएगा? तो ये 2a आ गया, ये 4b आ गया प्लस c log 2 इक्वल टू 0। अब log 3 रख दो तो 3 इक्वेशन मिल गई ना। मैंने कहा था जितने वेरिएबल हैं, अगर n वेक्टर है तो n वेरिएबल अननोन रखने पड़ेंगे आपको, एंड देन यू ट्राई टू इंपोज n कंस्ट्रेंट टू गेट n इक्वेशंस। मैंने वो ये अच्छा ये सब तकलीफ दे रहा था ना, तो ये 0 आ गया, इसमें 0 रखा पहले, तो एक ये हो गया। अच्छा अगर ये 2 है ना, ये नहीं रखा है log 2 fog 2, ये है मेरे पास, ये 2 है ना, तो इसका ये सारे डिफरेंशिएबल भी तो है ना, करो तो डिफरेंशिएट। तो a इट पावर x प्लस 2b इट पावर 2x प्लस c इक्वल टू जीरो फंक्शन, ये तो इसका अभी भी वही आएगा। और अब रख दो 0 x इक्वल टू, तो क्या हो गया यहां पर? a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन ये मिल गई। अच्छा इसी से हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 लिख दें इसको, और ये मेरा 0 गिवन है ऑलरेडी, तो b प्लस c इक्वल टू 0 मिल गई। अभी नहीं मन मरा तो एक बार फिर कर दो डिफरेंशिएट, अभी ये भी तो है ना, तो a इट पावर x प्लस 4b इट पावर 2x इक्वल टू 0 फंक्शन। अब इसमें रख दे 0, तो a प्लस 4b 0, और यहां पर पहले a प्लस b 0, इससे दोनों अपने आप 0 हो गए। ये जब भी ऐसे दो इक्वेशन आ रही है ना, वो तो अपने आप भाई लाइन की इक्वेशन है ना, ये a प्लस b इक्वल टू 0, y इक्वल टू x, y कहां कट करेंगे? केवल 0 पे। तो यहां a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दो c इक्वल टू 0, तो इसका तो ये तीनों क्या हो गए? li। एल्गोरिथम वही है, a समेशन ai xi इक्वल टू 0 रखिए, ट्राई टू फाइंड आउट कंस्ट्रेंट की यू गेट n इक्वेशंस। वो कैसे ढूंढना है वो आपको सोचना होगा। फंक्शन, हाँ जी, नहीं डिफरेंशिएबल होना चाहिए तब तो कर सकते हैं ना, x प्लस x मॉड x, नहीं कुछ भी इस तरह से x, हाँ इंटीग्रेट कर दो, एनीथिंग वैलिड। जो इक्वेशन है ना उस पर जो चीज वैलिड हो सकती है, n पॉइंट रिप्लेस कर देना, अगर वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन, तभी तो ये डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेट। जैसे x फ्रैक्शनल पार्ट x एंड ग्रेटर इंटू x, ये एलडी है, ये सेट एलडी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू x माइनस दिस, वैसे ही जानता हूं ना ये तो, अब रख के थोड़ी चेक करूंगा, नहीं हम तो वैसे ही निकालेंगे a f प्लस b g प्लस c h, ये 3 फंक्शन है, हम ऐसे ही करेंगे। कई बार दिख रहे होते हैं फंक्शन, जो पुराना ज्ञान होता है वो काम आएगा, तो उनको साफ मालूम चला कि ये ऐसा है, देन हेंस इट इज एलडी। ये 3 एलडी है, नहीं देन यू हैव टेकिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0। इंटीग्रल में तो आपके पास राइट है ना, कांस्टेंट कुछ भी, दैट इज ट्रू फॉर ऑल कांस्टेंट ना, फॉर c इक्वल टू 0 ऑल्सो इज ट्रू, नहीं तब भी तो ट्रू आएगा ना, तो वो कांस्टेंट आपकी चॉइस का इंटीग्रल ले सकते हो। बट दिन खराब होगा जिस दिन आपको इंटीग्रेट करना और ठीक है एंटी डेरिवेटिव यूज करना, उसके अदरवाइज तो बेसिक फंक्शन सीधे डिफरेंशिएट करते जाइए। इंटीग्रल इज टफर टॉपिक, टफर मेथड टू रन डिफरेंशिएशन, वो कहीं आसान है, इंटीग्रल मेथड है भी नहीं। यस पॉइंट पे नहीं, ये इंटरवल पे होता है, कनेक्टेड सेट पे होता है, नहीं तो एक पॉइंट पे तो हमेशा कोई ना कोई हो ही जाएगा ना, सबट्रैक्ट तो करना है आपको। किसी एक पॉइंट पे f और g दोनों की बात कर रहे हो, दो रियल नंबर ही तो है ना,
एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे आप करना तो किसी भी सेट पे चेक कर लो। हम जैसे आर पे कर रहे हैं, इंटरवल पे चेक कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एफ और जी दो फंक्शन मान लीजिए हैं, एफ और जी दो फंक्शन है, आपको किसी एक पॉइंट पे एल आई एल डी है कि नहीं ये चेक करें, ये क्वेश्चन शायद आपका। तो अगर एक पॉइंट वो अल्फा है मान लीजिए आर से, तो इस पॉइंट पे ये दो क्या मिल रहे हैं, दो रियल नंबर ही तो हैं। इस पॉइंट पे एफ एल्फा माइनस जी एल्फा, यही तो हमको जीरो शो करना है ना, इक्वल टू जीरो फंक्शन पे, उस पे जीरो पे लाई कर जाए जीरो फंक्शन। तो एक को ये कुछ और वैल्यू है, बी है ये वैल्यू, इसमें इसके इनवर्स से इसमें इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 में कोशिश कर सकते हो उस तरह से। बात तब भी तो वही है ना कि अगर 3 फंक्शन है, हमें कहां फर्क पड़ता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन एक्स, तो वहां पर अल्फा बीटा गामा तब भी वही ढूंढना पड़ेगा आपको। नहीं, फिर क्या करेंगे, उस पॉइंट पे ये दो का सम निकाल लो, जैसे ये अल्फा, तो एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, कुछ तो नंबर आएगा ना ये, उसके इनवर्स माइनस के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नंबर निकाला, और इसके इनवर्स से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है ना। मान लीजिए एफ अल्फा इक्वल टू ए, एफ बीटा इक्वल टू बी, और ना एफ एक ही है पॉइंट, तो जी अल्फा इक्वल टू बी, एच अल्फा इक्वल टू सी। देखो शायद इसी से प्रूफ हो जाए। तो एफ अल्फा प्लस जी बीटा, जी अल्फा प्लस एच अल्फा, ये है ना, इसका सम क्या आएगा, ए प्लस बी। तो जरा देखना कि सी इनवर्स अगर जीरो है तो छोड़ ही देंगे उसको, उस पर वो जीरो आ रहा है, तो फिर इन दो को जीरो करना है केवल। तो मान लेते तीनों नॉन जीरो है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब ये b इक्वल टू माइनस ए है, तो ये सम अपने आप जीरो, केवल इसको जीरो प्रूफ करना है आपको। सारे के देखते हैं, हम मान रहे हैं कि ना तो ये c इनवर्स, देखिए इसकी वैल्यू है f अल्फा प्लस जी बीटा, जी अल्फा माइनस ए प्लस बी इनवर्स एच अल्फा। उल्टा कर गए, हाँ नहीं, क्यों जी सेम क्यों देने, आप पूछ रहे जीरो ही तो करना है फंक्शन को हमको। अच्छा, एफ अल्फा मान लीजिए 1 है, और जी अल्फा मान लीजिए 2 है, तो 2f अल्फा माइनस जी अल्फा इक्वल टू 0 नहीं आ गया, तो मिल गया ना ये। और तीसरा अगर एच अल्फा कोई एक और है, ये मान लीजिए 3 है हमारा, तब भी आ जाएगा। तो नंबर है ना, एक पॉइंट पे पॉसिबली हमेशा हो जाएगा ये, चाहे एन हो। हमें करना क्या है, एक नंबर ही तो है, इसलिए सम ऑफ एन नंबर्स, तो n माइनस 1 का सम नेगेटिव कर दीजिए, वहां पर हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो। भाई आपको ना सबको 1 कर दो ना, सबको। जैसे मेरे पास ये है ना, एक तरीका ये बन सकता है, समेशन एफ आई अल्फा आई, मैं इसका ये अल्फा यही करना चाह रहा हूं, जीरो समेशन एफ आई अल्फा आई। ये सारे रियल नंबर जो जीरो है उसको हटा सकते हैं हम, उससे कोफिशिएंट ले लूंगा क्या मैं 1, जो जीरो है उसको कोफिशिएंट ले लूंगा 1, जो नॉन जीरो है उसमें क्या किया मैंने, देखना समेशन एफ आई अल्फा इनवर्स एफ आई अल्फा, जो नॉन जीरो है, और आई वेरी फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। ये क्या आ गया, n आ गया, n माइनस, अब ये तो n आ रहा है, n इंटू जो अगला वाला बचा था f n अल्फा f n अल्फा इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, सारे जीरो। सबको 1 1 1 कर दिया, कितनी बार, n माइनस 1 है ये ना, n माइनस 1, कितने फंक्शन है ये, n माइनस 1, हर एक को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते लगे, तो सारा क्या हो गया, ये सारे 1 1 1, हाउ मेनी टाइम, n माइनस 1 टाइम। फिर यहां n माइनस 1 इंटू जो एक फंक्शन छोड़ दिया मैंने कोई भी, उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया 1, पूरा सम क्या आ गया 0। तो उस पॉइंट पे हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कोई भी फाइनाइट सेट दे दो, हम उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 जरूर दिखा सकते हैं।
किसी भी एक पॉइंट पे। बट जब दो पॉइंट होंगे हम इस पे भी जीरो दिखा सकते हैं, हम इस पे भी जीरो, बट सम दिखाने में दिक्कत आएगी फिर हमको। एक पॉइंट तो कह सकता हूं ना मैं, किसी भी एक पॉइंट पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट सेट ऑफ फंक्शंस कैन बी मेड जीरो ऑलवेज, बिकॉज इट इज नथिंग बट सम ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमेशा पॉसिबल है। ये मैंने आपको प्रॉपरली वही दे दिया कि कैसे करना है। समेशन ये सब 1 1 होता जाएगा सारा। आ रहा है एफ, देखना एफ आई एल्फा इक्वल टू ए आई मान लीजिए। ठीक है, तो मैं समेशन ए आई इनवर्स, ये क्या होगा 1, आई वेरी फ्रॉम 1 टू n - 1, तो ये क्या आएगा सम, बताओ n - 1 प्लस या माइनस n - 1 a n a इनवर्स। अब पूरा सम क्या आएगा 0 नहीं, तो समेशन बीटा आई एफ एल्फा आई इक्वल टू 0 दिखा रहे मैंने, आई इक्वल टू 1 टू n में। व्हाट इज बीटा 1? व्हाट इज बीटा 1? a1 इनवर्स, बीटा 2 a2 इनवर्स। इस सम में मैं वही फंक्शन यूज करूंगा जिनकी वैल्यू अल्फा पे 0 नहीं है, क्योंकि जिनकी वैल्यू अल्फा पे 0 है उसको मैं क्या करूंगा प्लस, जिनकी 0 है 1 इंटू दैट करते जाऊंगा तब भी 0 आने वाला है। तो इन एनी केस आई कैन प्रोड्यूस दिस एज अ 0। ठीक है, तो एक पॉइंट पे कोई भी सेट हमेशा ऐसा हो जाएगा फंक्शंस का। फिर निकालेंगे क्यों हम, यहां तो कहां चाहिए हमको, कहां लिख, अब तो इसीलिए उसमें जो इशू आ रहा था ना, वो जो 3 का मेथड था वहां पे हम तीनों केस में जब इन्वेस्ट कर रहा है, जब नहीं कर रहा है तो a माइनस बी 0 हो रहा होगा, a प्लस बी 0 हो रहा होगा, तभी तो नहीं कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा है a प्लस बी का मतलब a इक्वल टू माइनस बी तो है ना, तो उनका सम तो वैसे 0 हो गया ना, उसको हटाओ, उसका तो कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया ना, उसका कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या दिक्कत है, उसी मेथड को हमने ऐसे कर लिया अलग अलग, क्योंकि सम में दिक्कत आ सकती थी ना कि सम अगर 0 आ जाए 2 पॉइंट वैल्यू का तो क्या करेंगे, तो क्यों ले हम सबको, जिनका 0 आ रहा है वो फंक्शन अलग कर दिए, जिनका नॉन 0 आ रहा है वो लिखा, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 में शो कर दिया, दिस इज 0 फंक्शन, 0 है, द वैल्यू इज 0। हैंस अगर ऐसे कहा तो नहीं जाता, हैवंट सीन की एट एनी पॉइंट सेट ऑफ फंक्शन इज li और ld, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ डोमेन, और डोमेन हैज टू, आई थिंक कनेक्टेड में भी अगर ले रहे हैं शायद ये इंटरवल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं हो तो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। आप 2 पॉइंट कल को पूछोगे तो हमें एक बार फिर करना पड़ेगा, बट उसमें जब ये 0 रहा तब वो 0 ना हो, क्योंकि जब हम करेंगे तो दोनों का एक साथ ही आएगा ना, तब ये 0 हो रहा है तो वो नहीं हो, वो 0 तो ये भी ना हो, ये मुश्किल हो जाएगी। मतलब आप सोच के देखो ना, x और मॉड x को मैं इस सेट पे नहीं प्रूव कर, -1 और 1 ये 2 पॉइंट ले लीजिए, ये 2 पॉइंट ले लूं, कर सकता हूं क्या इस सेट पे, ये f और ये, अगर मैं इस पे करूंगा तो फिर ये नहीं होगा, इस पे करूंगा तो ये नहीं होगा, सपरेट इस पे सपरेट करना पड़ेगा और इस पे ऐड करना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे तो भी वो दोनों की वैल्यू सेम, तब भी ऐड करना पड़ेगा और सपरेट। तो ये कभी भी इन 2 पॉइंट पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसका कि अ सेट इज मे नॉट बी li ऑन अ सेट ऑफ 2 पॉइंट, may not be LD. Every set of function, non-singleton of course, non-singleton, every set of function is LD at any point. एक पॉइंट पे अगर दोगे LD आएगा, और ये तरीका भी प्रूफ कर लिया हमने। अगर मेरे पास ये फंक्शन सेट है ना, F1, F2, Fn, ये फंक्शन है, मैंने इसको प्रूफ कर दिया, दिस इज LD at any अल्फा। बट इसी में एक और पॉइंट लेता अल्फा एंड बीटा, तो कोई गारंटी नहीं है कि अब इस सेट पे वो, क्योंकि दोनों पॉइंट पे एक साथ 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी कोफिशिएंट से इस पे भी 0 हो और उसी कोफिशिएंट से इस पॉइंट पे सेम यूज करने पड़ेंगे हमको, ये सेम AI यूज करने पड़ेंगे पूरे सेट के लिए। एक ही AI सेट होता है ना हमारा, इसके तो सेम होते हैं ना, तो ये सेट LD इन 2 पॉइंट पे नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग li LD ऑन अ फाइनाइट सेट।
मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका फायदा हम कहां उठा पाएंगे, बट कॉन्सेप्ट इज गुड इनफ. इफ वी हैव सेट ऑफ फंक्शंस देन दे हैव डोमेन. ऑन डोमेन और सबसेट डोमेन वी कैन चेक LILD. या तो पूरे डोमेन में चेक करें या उसके सबसेट में चेक करें. जब हम सबसेट पे आते हैं, दैट सबसेट कैन बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, इंटरवल, एनीथिंग. बट हियर वी हैव गुड इनफ एग्जांपल दैट ऑन सिंगलटन सेट, नॉन सिंगलटन सेट ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज LD. बट नॉन सिंगलटन सेट इट मे और मे नॉट बी. वो कुछ भी पॉसिबल है. फिर ये एग्जांपल यहां पर है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. FGBS बताया था मैंने आपको. ठीक है. LILD बता चुके हम लोग. व्हाट इज LILD? FGBS, नॉन FGBS. क्या होता है नॉन FGBS? जो नॉन FGBS हो. Whenever LS equal to V, S is infinite. Then we say V is non-FGBS. Simple definition. Whenever L of S equal to V, S is infinite. जो भी सेट पूरे V को स्पैन करेगा वो इनफाइनाइट ही होगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से एग्जांपल आपके पास नॉन FGBS के हैं? सीक्वेंसेस वाला है ना, सीक्वेंसेस वाला एग्जांपल. Set of vector space of all sequences of real number over field. अच्छा, ये अच्छा एग्जांपल. लुक एट हियर. VAN. ठीक है, एक एग्जांपल उठा रहे हैं. AN इक्वल टू 0 और 1 और AN प्लस BN इक्वल टू AN प्लस BN. 1 that is it belongs to Z2. ये भी कह सकते हैं 0 1 और इसमें ऑपरेशन ये होते हैं. ठीक है. इस फील्ड से ले रहे हैं और ये मेरा डेफिनेशन हो गया. और अल्फा डॉट AN इक्वल टू अल्फा AN. और ये अल्फा AN सब किसके हैं? अल्फा बिलोंग टू Z2. सब Z2 के हैं. एडिशन डिफाइन, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन, रियल एनालिसिस पढ़ के आए हो. V कैसा सेट है? फाइनाइट, इनफाइनाइट. V सेट कैसा है? इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट में भी और अनकाउंटेबल. और फील्ड 2 एलिमेंट. फील्ड में कितने एलिमेंट हैं? मैंने दिस V ओवर Z2 इज वेक्टर स्पेस. है कि नहीं है? ये वेक्टर स्पेस है V ओवर Z2. बट इट इज नॉन FGBS. क्यों? अनकाउंटेबल. ये अनकाउंटेबल है. जब भी किसी वेक्टर स्पेस में अनकाउंटेबल एलिमेंट आ रहे हैं, अगर फील्ड काउंटेबल है या फाइनाइट है, FGBS नहीं हो सकता. क्योंकि FGBS ओवर काउंटेबल फील्ड हैज टू बी काउंटेबल. प्रूफ किया था हम लोगों ने इसको. एवरी FGBS ओवर काउंटेबल फील्ड हैज टू बी काउंटेबल. अगर वो FGBS अनकाउंटेबल है तो या तो फील्ड अनकाउंटेबल हो या फिर वो FGBS ना हो. ठीक है. वही जो रिलेशन नॉट Q implies नॉट P. क्लियर है ये? दिस ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1. ठीक. यस. हाँ, फिर से बोलो. हाँ, FN ओवर F बोलो ना. हाँ हाँ, वो FGBS है. F फील्ड है ना. FN F इज FGBS फॉर ऑल फील्ड F. चाहे जो फील्ड ले लीजिए. रीजन इसमें है तो n टपल. F में फील्ड में यूनिटी होती है. होता है. तो एक कोई भी x लोगे वो होगा A1 A2 AN. और इस F के 1 और 0 से मैं xi डिफाइन करूं. जैसे x1 1 0 0, x2 0 1 एंड सो ऑन, और xn 0 0 1. तो आप इस x को आप समेशन AI xi देख पा रहे हो. और ये x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका? Fn का. और कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है. पक्का? तो इनसे बन गया नहीं बन गया ये? तो दिस x1 x2 xn इनको इकट्ठा कर लो, इसे बनाओ s. तो ls इज व्हाट? f. और हमें एलिमेंट इन s. तो फॉर एनी n एनी f, fn ओवर f इज FGBS. ठीक है. R over Q is not FGBS because R is uncountable, Q is countable.
है ना. C over R is FGBS because only two element can, 1 and I, these two element can generate the whole vector space, है ना. C over R, both are uncountable, true. But if you take any x belong to C, if x belong to C, then this x must be of the form A plus IB, but this can be A into 1 plus I, B into I can write like this. And if I take set S equal to 1 comma I, this is subset of C, and every element A and B are real. Every element is linear combination of these two elements, 1 and I. So this is FDVS, FGVS. We don't know FD. हम लोग जानते भी नहीं है FD क्या होता है. FGVS, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. हाँ जी. क्या लेते हैं हम? तो वो कैसा सेट बन जाएगा? वो काउंटेबल हो जाएगा वो. फिर FGBS फिर भी नहीं होगा वो, क्योंकि 1 x x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट ले लो. दिस इज LI. अब ये खुद LI है तो किसी और से बनेगा नहीं. अब एक इनफाइनाइट LI सेट बन जाए, मिल जाए, तो फिर वेक्टर स्पेस FGBS कैसे होता है? क्योंकि उसका तो फाइनाइट सेट सब कुछ बनना है, तो इसको ही बनना होगा. हैंस दैट इज नॉट ट्रू. वेरी गुड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन बेसिस. और ये आपको करना भी है, तरह तरह के वेक्टर स्पेस, जैसे इसने किया ना अभी कि पॉलिनोमियल विथ कोफिशिएंट फ्रॉम दिस सेट और दैट सेट. ठीक है, अब पॉलिनोमियल सारे इकट्ठे किए या डिग्री आपने वो कर ली. अगर आप डिग्री पे कन्फाइन कर लेते कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 100, लेस देन और इक्वल टू 100 एंड कोफिशिएंट फ्रॉम Z2. कोफिशिएंट आप किससे होते हैं? Z2 से. फील्ड भी होती है आपकी Z2 की. तो 1x x स्क्वायर अप टू x पावर 100, यही सेट सबको बना देगा. एंड दैट वे इट विल बी FGBS. और वेक्टर्स में कितने एलिमेंट आएंगे? काउंटेबल आएंगे. उसमें भी काउंटेबल आएगा. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वो काउंटेबल ही आएगा. अच्छा, ये इसका एग्जांपल जनरलाइज A0 प्लस A1 x एंड सो ऑन AN x पावर n, AI बिलोंग्स टू Q एंड N बिलोंग्स टू N यूनियन 0. दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोफिशिएंट. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ ऑल, पूरा n को भी वेरी करा दिया, AI वेरी करा दिया, इसमें सारे पॉलिनोमियल आ गए. ठीक है, देन s इक्वल टू 1 x x स्क्वायर x पावर n प्लस 1 दिस. देन s इज सबसेट ऑफ V. s इज सबसेट ऑफ V. ठीक है, दिस V इज वेक्टर स्पेस ओवर Q. V इज वेक्टर स्पेस ऑफ Q. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोफिशिएंट काउंटेबल. सो V इज अ काउंटेबल सेट. व्हाट इज फील्ड? काउंटेबल. बट V ओवर Q हमारा FGBS नहीं है. V ओवर Q, V काउंटेबल है, Q काउंटेबल, सब काउंटेबल बन रहा है यहां पर. V itself is a countable set, but V over Q is not FGBS. Why? S is LI. S का एलिमेंट कभी भी कोई एलिमेंट किसी और से नहीं बन सकता. ये आपस में एक दूसरे से नहीं बन सकते. ये सारे LI हैं. अगर स्पैन करना है इस सेट को स्पैन, कोई और तो स्पैन कर देगा, बट ये सेट फाइनाइट सेट से कैसे स्पैन हो जाएगा? अगर ये किसी फाइनाइट सेट से स्पैन होता है तो फिर LI होता है. समझ ना, ये LI है कि नहीं है? अगर ये फाइनाइट सेट से स्पैन हो तो फाइनाइट सेट के अंदर LI बनेगा नहीं बनेगा? तो बाकी कहां से आएंगे LD, जबकि हम सारे LI कह रहे हैं. तो ये जो आ रहे हैं, और कैसे प्रूफ किया था LI इसको? इसका हर फाइनाइट सबसेट LI है, मैंने ये दिखाया था. I took any finite subset x power n1, x power n2, x power nr, summation AR, AI x to power ni, I vary from 1 to r, equal to 0 polynomial, equating coefficients. सारे क्वेश्चन कैसे आ गए? 0. इसका हर फाइनाइट सबसेट LI है, इसलिए ये सेट LI है. हाँ जी. किसमें? किसमें? इसमें ये R आएगा. अच्छा, वो उससे परेशान है. वाह, इसे कहते हैं ना ध्यान रखना. ठीक है, अब इसका अभी भी ठीक नहीं है, आप लोग कुछ और समझ रहे थे. ठीक है, इसमें सारे पॉलिनोमियल है. n को भी वेरी करा रहा हूं, मैंने बोला ना n भी वेरी कर रहा है, ये भी. इट इज नॉट सेट ऑफ दोज पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज लेस देन इक्वल टू n. इट इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स. ऑल पॉलिनोमियल. तब अगर डिग्री फिक्स कर देंगे तो फिर तो फाइनाइट ही आएगा वहां पर.
एन कुछ तो चूज करना पड़ेगा ना, ठीक। तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, एल डी एंड स्पैनिंग ऑफ अ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस करें, दो ही चीजें मैं जानता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज सब स्पेस, हम आगे और काम करेंगे सब स्पेस पे, और दूसरा ट्रिवियल एंड इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। हाँ जी, यहां इस केस में एलएसवी बन जाएगा। हाँ, इस केस में एलएसवी बन जाएगा, बिल्कुल ठीक, बन ही जाएगा। किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर एक भी इनफाइनाइट एलआई सेट मिल गया, दैट वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी एफजीवीएस। इफ अ वेक्टर स्पेस कंटेन्स एन इनफाइनाइट एलआई सबसेट, then that vector space cannot be FGVS. It has to be non-FGVS. ठीक है, समझ में आया ये स्टेटमेंट? If a vector space has infinite Li subset, if a vector space has infinite Li subset, then the vector space cannot be FGVS. The vector space cannot be FGVS. That is, it is non-FGVS, not finitely generated. ठीक है, तो कई बार ये तरीका भी होता है कहने का कि जैसे अभी वो देख रहे थे हमारा V AN इक्वल टू 0 और 1 इन Z2, दैट इज व्हाट। तो मैं एक X1 1 0 0 0 0, X2 0 1 0 0 0, X3 0 1 0 1। हाँ जी, ज्ञान आया अभी अभी मन में, ठीक है। ये V है, इसमें सारी सीक्वेंस है 0 1 की, और मैं ऐसे सेट कितने बना सकता हूं ऐसे इनफाइनाइट? एक S बना लिया मैंने, X1 X2 XN प्लस 1 एंड सो ऑन। X इज Li, X इज Li, क्या LS इक्वल टू V बोल दूं? 0 तो हमेशा आता है, 0 तो 5 एम्प्टी में भी आ जाता है, 0 की दिक्कत नहीं है, बट नहीं बोल सकते दिस एलएस इज नॉट इक्वल टू वी। सिंगल लॉजिक दो, दिस एलएस इज नॉट इक्वल टू वी। ये ले ना 1 0 0 0 1 0 0, दिस एलएस इज नॉट इक्वल टू वी, बिकॉज इफ दिस एलएस इक्वल टू वी, वी विल बी काउंटेबल। ये लेबल्ड सेट है भाई, नहीं एक करके आगे बढ़ते ले आएंगे ना इस तरह से, जो भी एलिमेंट निकालना है। इस तरह से नहीं कह सकते कि ये उसको कभी स्पेन नहीं कर सकता है, ये स्पेन नहीं कर पाएगा उसको, समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं कर पाएगा हम देख सकते हैं, ये स्पेन इसको नहीं करता। ये सेट कैसा है? ये काउंटेबल सेट है भाई, ठीक है। चलिए आगे, बेसिस, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लीनियर अलजेब्रा। हाँ जी, हेमल बेसिस बोलते हैं उसको, हेमल बेसिस। चर्चा होगी अभी एफडीबीएस पे जाते हैं ना, हर इनफाइनाइट बेसिस की बात जो आप ढूंढ रहे हैं एलएसबी हो जाए क्या होगा? खुद भी ले लो, क्या दिक्कत है? वी सबसेट है कि नहीं है? चलो 0 बाहर कर दो, ठीक है, कोई 2 4 और बाहर कर दे, फिर उनके लिए कॉम्बिनेशन रख लें, बहुत सारे मिल जाएंगे। बेसिस ही क्वेश्चन है, बेसिस की बेसिस कौन सी है? यू आर लुकिंग फॉर बेसिस परहैप्स। एलएस तो दुनिया भर किसी भी बी से एलबी तो बी ही बनता है ना, बट वी आर लुकिंग फॉर एलआई सेट। लिखिए बेसिस डेफिनेशन, let V be a vector space over F. Let V be a vector space over F, and S a subset of V. Capital S a subset of V. Capital S a subset of V. We say S is a basis of V. We say S is a basis, a basis बहुत सारी हो सकती हैं। We say S is a basis
of V if number 1 S is Li and number 2 S L of S equal to V. ठीक है, अगर कोई भी सेट पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे और उसके अंदर एलिमेंट किसी और से स्पैन ना हो आपस में, दैट सेट इज Li, देन सच सेट इज कॉल्ड अ बेसिस. अ वेक्टर स्पेस कैन हैव n नंबर ऑफ बेसिस. ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई? नोट लगा लीजिए. अ वेक्टर स्पेस कैन हैव more than one basis by n number of. A vector space can have more than one basis. पहला नोट. दूसरा नोट ये है, कुल 2 ही ऐसे वेक्टर स्पेस हमको दिखाई दे रहे हैं जहां पर, अच्छा 2 एलिमेंट वाला Z2 ओवर Z2, हाँ 2 वाला भी है. एक L of phi इक्वल टू, अब जानते हो सिंगलटन 0 होता है. तो पहला नोट ये है कि सिंगलटन 0 वेक्टर इट हैज ओनली वन बेसिस, दैट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज बेस, ऑफ कोर्स इट कैन बी एम्प्टी एज वेल. तो एम्प्टी सेट इज द बेसिस फॉर सिंगलटन 0. वैसे तो होती नहीं है, बट मान लेके चलना है. तो जो कहते हैं ना एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, ये थोड़ी कहा कि नॉन एम्प्टी बेसिस. जब ये बोलते हैं ना एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, तो उसमें ये एम्प्टी सेट. पहला नोट ये कि सिंगलटन 0 वेक्टर हैज बेसिस एम्प्टी सेट. ठीक है, अभी करेंगे ना, अभी करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे. कितनी तेज भाग रहा है भाई, है ना. एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, 2 डायरेक्शन में प्रूव करेंगे. पहले व्हेन इट इज FGVS, 2 व्हेन इट इज नॉन FGVS. ठीक है, नॉन FGVS में हम लोग कह लेंगे भाई थ्रू एक्सियम चॉइस, जॉन्स लेमा, मैक्सिमलिटी कंफर्म होना चाहिए. कौन पता नहीं, ढूंढने के तरीके होते हैं. फिर बहुत लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है. FGVS में पक्का गारंटीड है, प्रूफ हो जाता है. बट नॉन FGVS में स्टेटमेंट उठाए जाते हैं कि सिंस इट इज इनफाइनाइट वी विल कीप ऑन कलेक्टिंग Li सेट्स एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग, देयर विल बी चेन ऑफ इंक्रीजिंग, एंड देन इट हैज मैक्सिमल बाय जॉन्स लेमा, एंड दैट विल स्पैन द होल वेक्टर स्पेस. इफ नॉट सो, तो एक और मिल जाएगा जो कहेगा ये मैक्सिमल नहीं है. कंडीशन आ गया, हेंस इट इज बेसिस. वो दिखाते कैसे. इसके पास है ना दूसरा Z2 ओवर Z2, ये भी वेक्टर स्पेस है. ये फील्ड F ओवर F, इसके पास भी एक ही बेसिस है. इसका एक ही बेसिस है. कौन सा? S सिंगलटन 1. और कोई इसमें 2 ही तो एलिमेंट है Z2 में, 0 और 1. तो 0 थोड़ी बेसिस में जाएगा कभी भी, तो LD बना देता है उसको. तो कौन जाएगा बेसिस में? सिर्फ एक. इसके पास भी एक ही बेसिस है. मतलब मैंने वो 2 वेक्टर स्पेस ढूंढ लिए जिनके पास सिर्फ एक बेसिस है. आपसे कोई पूछे कि गिव मी एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर स्पेस व्हिच इज ओनली वन बेसिस, यू से सिंगल 0 वेक्टर एंड बेसिस एम्प्टी सेट. नहीं, नॉन एम्प्टी बताओ. ठीक है, Z2 ओवर Z2 इट हैज ओनली वन बेसिस एंड दैट 2 इज सिंगलटन 1. कंफर्म? बेसिस समझ में आया? Z2 में 2 ही तो एलिमेंट है, 0 1. इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा. जो भी मिलेगा वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है ना, तो बनाने वाली बात है. एनी वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1 विच हैज 2 एलिमेंट, वही तो आएगा ना. कोई भी वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन अभी बताया नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी हमने बेसिस की बात की, सिर्फ बेसिस. ठीक है, सो अ वेक्टर स्पेस हैज बेसिस मींस देयर इज अ सेट S व्हिच इज Li एंड कैन स्पैन द होल वेक्टर स्पेस. डेफिनेशन ऑफ बेसिस. अब आगे बेसिस के बेसिस पे नए टर्म आ रहे हैं. अब लिखे, अब मेरे पास 2 तरह के वेक्टर स्पेस होते हैं, एक FGVS और एक नॉन FGVS. तो पूरा डिस्कशन 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगा. एक जो सारा FGVS में चलेगा, जो नॉन FGVS में अलग अलग पॉइंट है कि ये नॉन FGVS में ध्यान रखेंगे हम, ये पॉइंट होते हैं. बाकी सारी आपकी अलजेब्रा FGVS पे ही है. ठीक है, लिखिए results and theorem on FGVS. Results on FGVS.
4 स्टैंडर्ड थ्योरम है FGBS के ऊपर। किस पे? FGBS। पहला, एवरी FGBS हैज अ बेसिस, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। पहली है एग्जिस्टेंस थ्योरम। एवरी FGBS हैज अ बेसिस, हर FGBS के पास एक बेसिस होगी। सिंगल जीरो के पास हो गई, किसी भी FGBS के पास बेसिस जरूर होगी। हम 4 थ्योरम हैं, जो एक है हमारी एग्जिस्टेंस, दूसरी इनवेरियंस, तीसरी एक्सटेंशन, चौथी पता नहीं। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल थ्योरम तो है, चौथी और कॉम्बिनेशन बनती है, वो नॉन FGBS हो जाते हैं चौथी के लिए। बट किसी भी FGBS के लिए 3 थ्योरम बड़ी स्टैंडर्ड है और जगह जगह इस्तेमाल होती हैं। पहला तो एग्जिस्टेंस, कंफर्म करना होगा हमको, एवरी FGBS हैज अ बेसिस। सोचो, प्रूफ कल भी चर्चा हुई है, हवा में कर सकते हो। हर FGBS का बेसिस जरूर होगी। केस 1, इट इज सिंगलटन जीरो, डन। ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, डन। लेट्स टेक इट इज नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस। अब बेसिस होगी कि नहीं होगी? देयर इज अ फाइनाइट सेट S विथ स्पैन, ये कंफर्म हुआ। अगर उसने कहा है FGBS तो उसकी हेडेक है, हम मांगेंगे उससे मुझे वो फाइनाइट सेट दो जिससे आपने स्पैन किया हुआ है, वो फाइनाइट सेट मुझे देगा S। I'll see whether it is Li or not. If Li, वापस कर देंगे, यही आपका बेसिस। अगर वो Li नहीं है तो LD होगा, तो कोई ना कोई सब पे डिपेंड कर रहा होगा बाकियों पे, उसको निकाल के बाहर करेंगे, बना S1। L of S1 इज अगेन V, ये भी स्पेन करेगा। अब ये Li हुआ तो समझ लीजिए कि ये बेसिस बन गया, नहीं तो फिर से कोई ऐसा हो रहा होगा, उसको निकाल बाहर करेंगे, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम जीरो को बाहर करते हैं। तो जब स्टार्ट करना प्रोसेस, इफ जीरो इज देयर रिमूव इट आउट, इफ नॉट देन स्टार्ट द प्रोसेस LD, रिमूव वन एलिमेंट, अगेन LD, रिमूव नेक्स्ट एलिमेंट, एंड सो ऑन। वर्स्ट सिचुएशन में यू विल बी लेफ्ट विथ सिंगलटन पॉसिबली, बट दैट विल बी Li, hence it is basis. Or otherwise, whenever you arrive at Li set, that will be basis. Since you started with finite set, hence the process will terminate after finite number of term. So guaranteed कि इसके पास बेसिस होगा। ठीक ना? ये तीनों थ्योरम के प्रूफ आप बुक से कॉपी कर लेना, इसको अगर कॉपी करने का मन हो तो। बट दिमाग में रखिए एग्जिस्टेंस, एक्सटेंशन एंड इनवेरियंस। क्लियर? पहला ये है कि एवरी FGBS हैज अ बेसिस। वैसे तो नॉन FGBS के लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक मानता है एक नहीं मानता, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, एनी 2 बेसिस ऑफ एन FGBS, वैसे तो एनी 2 बेसिस of an FGBS have same cardinality. Same cardinality. इसे बोलते हैं इनवेरियंस थ्योरम। If S1, S2 are 2 bases, then cardinality of S1 equal to cardinality of S2. So all the bases have same cardinality. ठीक है, इसी में नोट लगाइए सेकंड में, फॉर एनी FGBS, basis is the largest Li set. Basis is the largest Li set in the sense of cardinality. क्योंकि उससे बड़ा कार्डिनलिटी का एग्जिस्ट कर गया ना, तो फिर वो एक स्पैन नहीं कर रहा होगा, तभी बाहर रह गया वो। बेसिस इज द लार्जेस्ट Li सेट इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। इससे ज्यादा कार्डिनलिटी का सेट Li नहीं हो सकता। बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट, इसी में ही बेसिस इज द smallest spanning set in the sense of cardinality.
basis is the smallest spanning set in the sense of cardinality. इससे बड़ी कार्डिनलिटी का एलाइन नहीं हो सकता और इससे छोटी कार्डिनलिटी का स्पैन नहीं कर सकता. दिस इज द बिग रिजल्ट अबाउट बेसिस फॉर एनी FGBS. फाइनाइट के सेंस में बात कर रहे हैं हम लोग सारा, और ये सेट फाइनाइट ही होने वाले हैं. और इसी से आप कह सकते हो कि ये इनवेरिएंट भी है, क्योंकि S1 और S2 दोनों बेसिस हैं, तो एक बार LI अप्लाई करो तो वहां लेस देन इक्वल टू, एक बार स्पैनिंग अप्लाई करो तो ये गेट इक्वल टू. दोनों सेंस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. और इसी से नेक्स्ट टर्म कॉइन हो जाता है डायमेंशन. लिखिए नेक्स्ट नोट. हमने क्या डेफिनेशन दी है? सेकंड थ्योरम क्या है? एनी टू बेसिस ऑफ अ वेक्टर FGBS हैव सेम कार्डिनलिटी कॉल्ड इनवेरिएंस थ्योरम. और इसी में हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की. जो बेसिस होती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि फॉर एनी FGBS दे आर लार्जेस्ट LI सेट इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी. अगर कोई पूछे कि बेसिस की जो कार्डिनलिटी मान लीजिए आपको मालूम चल गया 10 है, तो ये जो 10 आया ना, ये बता रहा है कि इस सेट वेक्टर स्पेस में इससे ज्यादा कार्डिनलिटी के LI नहीं हो सकते और इससे कम कार्डिनलिटी वाले स्पैन नहीं कर सकते. तो इट इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग कार्डिनलिटी और इट इज द लार्जेस्ट LI कार्डिनलिटी. एक ये सेंस. फिर उसके बाद जो अगला टर्म नोट लिख रहे हैं कि इफ S1 एंड S2 आर बेसिस ऑफ V, और व्हाट इज V? वेयर. अब नहीं भी लिखेंगे तो मान लेना कि ये FGBS है, नहीं तो बाद में दुखी करो मेरे को. दे आर देन S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू N बाय इनवेरिएंस थ्योरम से. देन N इज डिफाइंड एज डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. एक खास नंबर मिल गया तो नेक्स्ट नोट में डायमेंशन वर्ड डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग. And then this N is called the dimension of V over F, and we denote it by dimension of V over F is cardinality of S is N, where S is any basis. अच्छा, इसके सही सिंगुलर प्लूरल अलग अलग हैं. ठीक है. बेसिस 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 बेसिस, वो बेसिस ये बेसिस है ना, है कि नहीं? वो बेसिस ये बेसिस. प्रोनाउंस कैसे करते होंगे वो लोग इनको? दोनों प्लूरल सिंगुलर कैसे प्रोनाउंस करते होंगे? बेसिस बेसिस. चलिए ठीक है. क्या मैं कह रहा हूं, ये और इनको प्रोनाउंस कैसे अलग अलग करोगे? एक ये बेसिस ES लिखा है या IS लिखा है, मतलब प्लूरल के लिए बेसिस यूज करते हैं ना, उसके लिए बेसिस यूज करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सेम ही है. A और R से काम चलेगा मेरे ख्याल से ना, उससे काम चलता. जरूरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो. बिल्कुल. लिखिए. अभी एक्सटेंशन पे आ रहे हैं, अभी कहां बनाएंगे? क्यों भाग रहे हो भाई इतनी जल्दी? कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए. इतना यकीन मानो 24-25 नवंबर तक के आपके सामने जो पेपर्स उठाओगे ना, तो मेरी टॉपिक में से 100 का अटेम्प्ट तो हो रहा होगा, 175 का अटेम्प्ट तो हो रहा होगा. सही ना हो वो अलग बात है, वो तो आपको तय करना है ना उसमें होगा कैसे. बट उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, उससे तो सिलेबस ही नहीं है. क्या कर लें, कहीं से भी कितना ढूंढ के लेके आएंगे? टर्म वही है सारे, बट आप उस पर भरोसा रखो जो आपसे हो जाता है. यस सर मैं LI निकाल लेता हूं. अच्छा 1001 है सर, दूसरा क्वेश्चन. ये हमें पता है कि हम LI कैसे निकालते हैं. एल्गोरिथम मेरे पास है, अपने कंस्टेंट अप्लाई करना मुझे आता है. कैसे अप्लाई करेंगे? ये इंटीग्रेट करेगा, कोई डिफरेंशिएट करेगा, कोई वैल्यू पुट करेगा. N फंक्शन है, अब N वैल्यू पुट करोगे तो सोच समझ के वैल्यू पुट करो. साइन कॉस है, वैल्यू क्या रख रहे हो? 25 30, अरे π/3 π/4 ऐसे रखो जिससे वैल्यू मालूम होती हो. रख तो तब भी दोगे आप, सॉल्व कौन करेगा उन इक्वेशंस को? क्लियर. एल्गोरिथम सेम है. उसके बाद हम लोग बेसिस पे आ रहे हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. पहला था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, दूसरा LI LD, तीसरा आ रहा है बेसिस फॉर FGBS दैट सेट विच कैन स्पैन द होल वेक्टर स्पेस एंड LI एज वेल इज बेसिस. अगर वो FGBS है तो ये फाइनाइट सेट पक्का मिलेगा.
ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं, हमें एक चाहिए होता है। सेट कैन हैव, वेक्टर स्पेस कैन हैव n नंबर ऑफ बेसिस, नीड नॉट टू बी यूनिक। तो यहां पर हमने जब इनवेरिएंट हमारी जो थी, जिससे हमने टर्म कॉइन किया, क्योंकि हमेशा एक नंबर मिलेगा n, दिस टर्म इज कॉल्ड डायमेंशन एंड वी सेट टू बी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, एंड देन वी सेट टू बी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। And then V is said to be n dimensional vector space, and hence FGVS are also referred as FDVS. Hence FGVS are also referred as FDVS, finite dimensional vector space. ठीक है, अब ये विचित्री है, एवरी FDVS हैज अ बेसिस। सोचो ना कैसा स्ट्रीम लगता होगा, एवरी FDVS हैज अ बेसिस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। पहले बेसिस से पहले डायमेंशन है, पहले बेसिस आया, फिर डायमेंशन आया, फिर FDVS आया, फिर वापस जाने का तो रास्ता ही खत्म हो गया ना कि अब FDVS से वापस बेसिस पे जाए। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, एक्चुअली इट शुड बी एवरी FGVS हैज अ बेसिस। क्लियर? आगे लिखिए। तो अभी पूछा था एक्सटेंशन थ्योरम। ठीक है, एनी एलआई सेट ऑफ एन FGVS, सुन लीजिए पहले, एनी एलआई सेट ऑफ एन FGVS कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस। आपके पास एक एलआई सेट, मान लीजिए डायमेंशन 10 है वेक्टर स्पेस, अब तो डायमेंशन यूज कर सकते हैं ना, अब डायमेंशन निकालना सीखेंगे हम लोग। डायमेंशन मान लीजिए 10 है, हमको 6 एलिमेंट वाला कोई एक सबसेट मिला जो एलआई है, इट कैन नॉट स्पैन, क्योंकि 10 इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी फॉर स्पैनिंग। बेसिस गिव्स यू द स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी फॉर स्पैनिंग, लार्जेस्ट कार्डिनलिटी फॉर एलआई, यही तो है ना। तो अगर 6 एलिमेंट एलआई मिल गए तो ये कुछ तो ऐसे बच गए जिनको स्पैन नहीं कर पाएगा, इन 6 को रखो। जो बच गए ना उनको स्पैन करने के लिए आपको कैसा सेट चाहिए? फाइनाइट सेट ही चाहिए ना, बिकॉज FGVS है। तो जो बाकी होंगे दैट कैन बी स्पैन बाय फाइनाइट सेट से S प्राइम। मान लीजिए ये S था, ये S प्राइम, S is finite, S prime is finite. Take union. Now this will span. Now it is Li और LD. Question, अगर LD है तो कोई ना कोई तो बाकी डिपेंड कर रहा होगा। ये 6 तो है ही नहीं, हम पता है ये 6 तो आपस में दुखी करेंगे, तो इधर में से ढूंढेंगे जो बाकी डिपेंड कर रहा है, उसको बाहर कर देंगे। अब बचा तो फिर अगर Li तो डन, तो ये 6 थे और मिल गए, इस बेसिस बन गया, नहीं तो फिर ऐसे माइनस कर देंगे। इन दिस वे हम 20 से स्टार्ट करके 10 पे आ जाएंगे। मान लीजिए हमें ऐसे रैंडमली उठा ले, 6 तो थे हमारे पास, कहीं से 14 एलिमेंट रैंडम मिल गया, अच्छा ये बाकियों को स्पेंड कर रहे हैं, शामिल कर लिया, पक्का बाहर करना होगा हमें ये करके। तो पहले इन्हीं 14 में से बाहर हो जाएंगे, पूरे 10 बाहर होंगे, 4 बचेंगे, ये 6 और ये 4 मिलके उसको स्पेंड कर देंगे और बेसिस भी बना दिए। सो एनी एलआई सेट, ये सबसे ज्यादा यूज वाली थ्योरम है। हम लोग क्या वहां पर भी सब स्पेस लिया, उसको एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेसिस बना दी, उसी को हर जगह, चाहे वो सिल्वेस्टर लॉ प्रूफ करना हो या डायलेशन प्रोसेस में जाते हैं हम लोग, या GMAM प्रूफ करते हैं, सब जगह एक्सटेंशन थ्योरम। एनी एलआई सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस, बट कहां बात हो रही है? FGVS में। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब आ गया है आपका डायमेंशन। आपको क्वेश्चन इस सेगमेंट से यही बनेगा, गिवन सेट वेदर इट इज एलआई और नॉट, गिवन सेट वेदर इट इज बेसिस और नॉट। ठीक है, चलिए फोर्थ नोट, इनवेरिएंट थ्योरम लिखा दी, एनी एलआई सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस इन एन FGVS। सो बेसिस के 3 थ्योरम मेरे पास है, एक्सटेंशन, इनवेरियंस एंड एग्जिस्टेंस, या रिवर्स ऑर्डर में, एग्जिस्टेंस, इनवेरियंस एंड एक्सटेंशन। अगर V मेरा लेट इज एन FDVS, अब हम लोग हमेशा ले सकते हैं ये इज एन FDVS और B इज अ बेसिस, इट मीन्स फॉर एनी x बिलोंग्स टू V, there exists A1, A2, AN belongs to F such that
x इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन an xn होगा. सिंस इट इज बेसिस all the element of V can be, this implies ना कि L of this implies and implied by L of B equal to V. तो V का हर एलिमेंट B के लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए. तो चाहे जो X चूज कर लीजिए, आपको ऐसे A1 A2 AN तो पक्का मिलेंगे कि जिनसे ये X बन जाएगा. इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो मिलेंगे ये यूनिक होंगे. अगर इसके एंड इफ पॉसिबल there exists B1, B2, Bn belongs to F such that X equal to B1 X1 plus B2 X2 and so on Bn Xn will imply summation AI Xi equal to summation Bi Xi. This implies summation AI minus Bi Xi equal to 0. ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का. Summation Ci Xi equal to 0. This implies Ci0 as Xi's are Li. That means Ai minus Bi equal to 0. That means पहले भी हम लोग स्पैनिंग कर रहे थे, तब ये बोल रहे थे कि ये मैक्सिमम है जिससे. अब जो बेसिस है ना, जितनी चॉइसेस आपके पास है एग्जैक्टली उतने ही वेक्टर्स क्रिएट कर सकता है. यहां से काउंटिंग आ सकती है. ठीक है. तो जो नोट लिख रहे हैं आप तो तीनों उसमें थ्योरम्स में, नेक्स्ट नोट ये है. एंड हेंस डिफाइन f फ्रॉम Vf टू Fn so that f of x equal to a1 a2 an, then f is 1 1 and on 2. फंक्शन अगर पढ़ के रियल पढ़ के तो हम तो यूज कर ही सकते हैं टेक्निक. f is 1 1 n. यूनिकनेस ऑफ एक्सप्रेशन. अब जो स्टेटमेंट अभी लिख लिया लास्ट में नोट लगा देंगे ना, क्या एक्चुअली ये प्रूफ समझ में आ रहा है ना. किसी x को अगर हमने दो तरह से एक्सप्रेस किया तो ये ai bi a2 b2 सब इक्वल आ जाएंगे. दैट मीन्स एवरी वेक्टर कैन बी ऑब्टेन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बट दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज यूनिक. ठीक है. दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन इज यूनिक. ठीक है. हाँ, मतलब कोई भी सेट S उठा लोगे और आप कहोगे सारे डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठे कर रहे हैं तो नए नए वेक्टर ही आएंगे, गारंटी नहीं है. बट अगर बेसिस से आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो हर लीनियर कॉम्बिनेशन आपको नया ही देगा. एक भी AI आपने चेंज कर दिया तो फिर नया होगा, क्योंकि दोनों अगर सेम दे रहे हैं तो ईच AI इक्वल टू BI. इफ जस्ट वन ऑफ देम इज डिफरेंट, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, P इंप्लाइज Q नॉट Q. एक भी CI AI BI इक्वल नहीं हुआ देन ये नहीं हो सकते. तो ये तो आगे ना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड. तो जैसे ही चेंज करोगे हमेशा चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो छाप लो पहले. तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी. ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज कर रहे हैं अभी हम लोग. जस्ट मैपिंग. जब भी मुझे दो सेट मिलते हैं ना तो एक आइडिया होता है, चलो कंपेयर करके देख लेते हैं. और व्हाट इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन? फंक्शन. तो मैंने एक फंक्शन बना लिया VF टू FN. FN में कैसे एलिमेंट है? n टपल. ठीक है. तो जो भी x लेंगे और व्हाट इज दिस A1 इट वेयर x इक्वल टू समेशन AI xi विद रिस्पेक्ट टू एनी बेसिस. यहां पे नाम दे दो B, यहां भी नाम दे दो B. बताने लिए किस बेसिस के रिप्रेजेंट में ऐसा किया है. FB जो हमारा बना f सफिक्स B, हर बेसिस रिस्पेक्ट में हम ये फंक्शन ढूंढ सकते हैं. किस किस के बीच में? VF और FN वेयर n इज डायमेंशन. वेयर n इज डायमेंशन. दिस मैप इज ऑलवेज 1 1 on 2. इसके हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग वहां मिलेगा, उसके हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग यहां मिलेगा. ठीक है. समझ में आ रहा है ना. और इससे भी आप कह सकते हो कि R ओवर Q इज नॉन FDVS, क्योंकि अगर R ओवर Q FDVS हो गया
मान लीजिए डायमेंशन n है, तो r ओवर q से q क्रॉस q n टाइप 1 1 ऑन टू मैप बन जाएगी, और q क्रॉस q n टाइम काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। नॉट करेक्ट। एक तो हमने वहां से किया कि जनरेशन से किया वहां से, ठीक, एक यहां से कर सकते थे, आइडिया यही था वहां पर भी, ठीक है। तो लास्ट में इसके बाद नोट लगा लीजिए जो वो ये इफ, इसकी प्रूफ जो आया उसका रिजल्ट, इफ बी इज अ बेसिस ऑफ एनी एफडीबीएस, अब तो एफडी यूज करेंगे थ्रू आउट, इफ कैपिटल बी इज अ बेसिस ऑफ एनी एफडीबीएस, then different linear combinations, if B is a basis of any FDBS, then different linear combinations of elements of B will give different vectors of B. है ना, और वही प्रूफ किया अभी हमने। एंड इसी में मोर ओवर, इफ वी फिक्स द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट इन बी, इसी में if B be a basis of V and FDBS V, then different linear combinations of the element of B provide different vectors in V, जो पहले नहीं था, है ना। हम क्या कहते थे कि वहां x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लिया था हमने पिछले वाले केस में, और देखा अगर x1 प्लस वो तो रिपीट भी कर सकता था, नहीं मालूम था कुछ भी ना, तो मैक्सिमम 8 बोल रहे थे वहां पर। अब हम ये कह सकते हैं कि जितने वेक्टर्स होंगे, जो जो लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठा करना चाहो कर सकते हो, जितनी चॉइस आपके पास है उतने वेक्टर प्रोड्यूस होंगे। अगर वो बेसिस है ना, ये किसी भी एलआई सेट के लिए होता है। अगर कोई सेट एलआई है, यहां किसका इस्तेमाल किया, केवल एलआई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने। कोई भी सेट एलआई है अगर, तो उसके डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंट वेक्टर ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे हमें काउंटिंग आसान हो जाती है कि कितने वेक्टर इट कैन प्रोड्यूस, मींस नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर स्केलर्स। जितनी स्केलर चॉइसेस होंगी उतने ही वेक्टर स्पेसेस वेक्टर्स हमारे बनने वाले हैं। इसी में आगे कर रहा हूं, मोर ओवर इफ वी फिक्स द प्लेसेस ऑफ द एलिमेंट इन बी, नेमली फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन, इफ वी फिक्स द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ये मेरा सेट से साथ ऑर्डर्ड सेट हो गया, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये nth एलिमेंट। देन बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड बेसिस, बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड बेसिस, दैट इज B1 B2 X2 X1 X3 Xn, Xn X1 X2 X3 Xn minus 1 R, ये अलग अलग हो गए। दैट इज B1 B2 R डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस देन B। इसमें फर्स्ट प्लेस पे कोई और आ गया। इफ वी फिक्स द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट इन द सेट B itself, then set becomes ordered and basis become ordered basis. That is B1 B2 are different ordered basis than B. हाँ जी, हाँ नहीं है, इसे प्रूफ किया ना हमने, क्योंकि अगर ये 1 1 on 2 हो गया तो ये अगर f काउंटेबल है तो fn काउंटेबल है, f काउंटेबल है तो fn काउंटेबल है, और ये 1 1 on 2 दोनों साइड सिमिलर हो गए, इसको काउंटेबल होना पड़ेगा, और वो वहां नहीं है, इसलिए वो उसका फाइनाइट बेसिस नहीं होगी, फाइनाइट जनरेशन नहीं होगा उसका। ठीक है, आर डिफरेंट ऑर्डर बेस, और इसका फायदा क्या होता है, एंड देन इसी में ऑर्डर बेस समझ में आ गया। व्हाट इज ऑर्डर बेसिस? इफ वी फिक्स द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस से बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनवर्ड,
and it is uniform, everyone take the first vector, second vector and so on, then it is called ordered basis. और ये different हो गई. And then with respect to ordered basis B, say x1, x2, xn, any x belongs to V is identified with a1, a2, an, n tuple as जब अंडरस्टूड हो कि यही बेसिस है, क्योंकि यूनियन तो फिक्स हो चुकी है, तो हम सिर्फ इस n टपल से बता पाएंगे कि ये कौन सा वेक्टर है. बजाय x के हम अब इन n टपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज, ये जो वेक्टर है यही x उसके ऐसे हो गया. तो हर वेक्टर एक स्केलर्स के n टपल से आइडेंटिफाई हो पा रहा है. हर वेक्टर अगर ये फिक्स हो गया ना, जब एक्सप्रेस करोगे तो यही आएगा. सबको मालूम है कि यही बेसिस है. अगर आपको हम ये दे दें 1 2 3 -1 4, आप पहचान जाओगे कौन सा वेक्टर है. बेसिस सबके पास है ही, सब इसमें ऑपरेट करेंगे और एक्चुअली एक्स निकाल लेंगे. और ये ऑर्डर पे अगर ये 2 1 है तो बदल जाएगा ना ये, क्योंकि अब ये कोफिशिएंट हो गया एक्स का, x1 का, और ये हो गया x2 का, क्योंकि ऑर्डरिंग कर दी ना. ये हमेशा फर्स्ट में, ये सेकंड में, थर्ड में एंड सो ऑन. तो एवरी वेक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड एज n टपल ऑफ द स्केलर्स. इफ अल्टीमेटली ये एम ये हुआ हमारा यहां पर आके कि इफ V इज FDVS with respect to any ordered basis, every vector can be identified as an n tuple of scalars. ठीक है, तो समरी लिख सकते हो फाइनली. इफ डायमेंशन ऑफ V over F equal to n, if dimension of V over F is n, then with respect to any ordered basis, every vector can be identified if dimension of V equal to n, then with respect to any ordered basis, every vector can be identified with an n tuple of scalars. Every vector can be identified with an n tuple of scalars. This n tuple is called the coordinate of that vector with respect to, this n tuple is called the coordinate of that vector with respect to that ordered basis. कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते आप, बेसिस चेंज होगी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. That n tuple is called the coordinate of that vector with respect to that ordered basis, and denoted by, and if x equal to summation ai xi, then notation for coordinate is this. ये क्या होगा? n tuple. अब इसको लिखने के दो तरीके, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग कॉलम में लिखते हैं. ये रो फॉर्म, ये कॉलम, ये ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है. अब दुखी हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, उसमें उसने एक मैट्रिक्स दे दी और एक वेक्टर दे दिया और पूछ रहा कि इसकी इमेज क्या आएगा इस मैट्रिक्स में. मतलब मैट्रिक्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. एक ऑपरेटर दे दिया उसने, मैट्रिक्स दे दी मतलब, और एक वेक्टर दे दिया. कह रहा है कि बताइए इसकी इमेज क्या है इसमें. ठीक है, तो आपको ए दिया हुआ है, ए, तो आपको खुद ही जज करना होगा. उसने जैसे एक मैट्रिक्स दे दी उसने और चार ऑप्शन में 1 2 3, ये एक x1 या ABC, ये वेक्टर दे दिया x, और कह रहा है इस x की इस a में इमेज क्या है. आपको पता है जब मैट्रिक्स ऑपरेट करते हो तो इमेज आती है. कहा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट उठाते हैं
जिस बेसिस रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स बनाएगी वो, और फिर ऑपरेट करते हैं तो इमेज के कोऑर्डिनेट आ जाता है, फिर को डोमेन की बेसिस में जाते हैं और इमेज निकाल लेते हैं। ये एक्चुअल प्रोसेस है। उसमें आप ए एक्स करोगे तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, और जब आप एक्स ए करोगे ना तब मैच करेगा। मतलब अगर कॉलम फॉर्म में लिखा गया है तभी तो आप ये 3x3 है, तो ऐसे कैसे ऑपरेट करोगे? 1x3 हुआ ना, तो इसको ऐसे ऑपरेट करोगे आप ना, तो वहां से जज करना हो ये 1x3, ये 3x3 या 1+3 आ जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट कॉलम में लिखोगे आप, अब चाहो कि ऐसे कर लो ABC, तो अलग आ रहा था आंसर। ये दिया एक्स, निकालना है में, जैसे कॉलम में लिख लिया और निकाल लिया, तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो ये दो अलग स्कूल ऑफ थॉट है। ये मोर डोमिनेंट जनरली यही मिलता है, 10-12% छोड़ दिया है तो यही मिलता है जनरली। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर, आप लोग ये बोलते रहे हो थ्रू आउट, 2 + 3i को आपने ऐसे लिखा था बहुत बार, है ना? किसी ने ध्यान भी नहीं देते, अपन लोग ऐसे बोल देते हैं ये 2 रियल पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट, ऐसे बोलते ना, 2 रियल पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट। ये अंडरस्टूड है कि हमारा बेसिस 1, है। अगर हमारा बेसिस i, 1 होता तो तब कोऑर्डिनेट क्या आता? 3, 2। अब ये रियल पार्ट है, ये तो उसी सेंस में है ना जब ये बेसिस है। तो हर वेक्टर को आप कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा बेसिस कौन सी है और किस ऑर्डर में वेक्टर्स हैं। जैसे अगर आपको एक बेसिस दे रहा हूं b = 1, 1, 1, 0, और किसके लिए? R2/R, 3, 4 ये मेरा x है, बताइए कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन है। एक बेसिस दे दी, बेसिस है, आप देख सकते हो ये Li है, स्पैन डायमेंशन 2 है इसकी। अब तो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे अभी। A 1, 1 + B 1, 0, अभी पहले ये निकाले, = 3, 4। A भी निकालना है हमको, तो A + B = 3 और A = 4। A + B = 3, और ठीक है, क्या आ गया? अच्छा, पीछे वही आवाज आई थी, होशियार बच्चों की है। 4, ये तो आ गया था मेरा, ये बाकी था, ठीक है। 4 and -1, दिस इज कोऑर्डिनेट। इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहे हैं। एक मैट्रिक्स पूछी गई थी, सबको याद होगा, BSc फाइनल में करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स में, देयर इज अ R2 to R2 सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, R2 to R2 बेसिस दे दी उन्होंने, और बताइए मैट्रिक्स क्या है। आसान क्वेश्चन है, डोमेन की बेसिस की इमेज निकालिए, को डोमेन की बेसिस में एक्सप्रेस कर दीजिए, उनके कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, बन गया। वो क्वेश्चन मैंने यहां टेस्ट में दिया, बहुत सारे, मतलब 90% बच्चों गलत हो गया वो क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ अरे यार मिस्टेक। हाँ, अरे यार मिस्टेक। 1001 हमारे दिमाग में इतना स्टैंडर्ड बैठा हुआ है ना, पहला 10 फिर 01, बेसिस 01, 10 दे दी। जब इमेज निकालोगे, पहले इसकी निकालोगे फिर इसकी निकालोगे, ये फर्स्ट कॉलम देगा, सेकंड कॉलम देगा, और दोनों मैट्रिक्स में थी। आप इससे बनाओगे तो जो मैट्रिक्स आ रही है, और इससे बनाओगे तो जो मैट्रिक्स आ रही है, तो इतना कॉमन है कि वो एफर्टलेसली सीधे फट 10 की निकाले ही आ गया। एक क्वेश्चन तो आया जो करने लायक है, फटफट किया तुरंत। तो कम से कम वहां पर टिक भी नहीं, चेक भी नहीं किया ऑर्डर क्या है। स्पेसिफिकली ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि ध्यान रखिए कि कौन सा दोनों होते हैं उस वहां पर जब भी इस तरह का आएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर, ये आगे दोबारा रिकॉल करेंगे जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस। लिखिए, डायमेंशनल एनालिसिस। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है इसके ऊपर, इनवेरिएबली। फिर काउंटिंग टेक्निक पे चले जाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें पहला पॉइंट, डायमेंशन ऑफ Fn/F is always n. True? Dimension of Fn/F is always n. And B equal one of the set x1, x2, xn, where x1 is 1, 0, 0, x2 0, 1, 0, and so on xn. Then B is Li,
एंड L of B इक्वल टू FN। बन जाएगा पूरा। ये LI प्रूफ कर सकते हो बड़े आराम से, A इंटू दिस प्लस B इंटू A1 A2 कर सकते हैं। यहीं पे नोट लगा सकते हो, दिस B इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड। और इसी ऑर्डर में रहेगा तो मतलब स्टैंडर्ड बेसिस को भी शफल कर सकते हो बड़े आराम से। तो वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होंगी। व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस? व्हेन दिस इज इन दिस ऑर्डर, पहला दूसरा तीसरा इस फॉर्मेट में, तब वो स्टैंडर्ड बेसिस हम लोग डील करते हैं। उसी स्टैंडर्ड बेसिस से हमारे पास n फैक्टोरियल कोऑर्डिनेट बन सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं और हर अरेंजमेंट के लिए आपको एक नया बेसिस मिलेगा, नया ऑर्डर बेसिस मिलेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, तो डायमेंशन ऑफ Fn ओवर F इज ऑलवेज n। तो Cn ओवर C, Rn ओवर R, Qn ओवर Q, एनी ZnP ओवर ZP है ना, ZpN ओवर ZP इन पर्टिकुलर दिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाँ जी, हाँ, अ वेक्टर स्पेस कैन हैव इनफाइनाइट बेसिस। अगर किसी वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट है ना, तो उसके पास इन और FGVS है, तो इनफाइनाइट बेसिस ही होंगी, चाहे फील्ड फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। अगर वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट है ना, तो और फील्ड में चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, बेस अगर वो FGVS तो फाइनाइट सेट ही चाहिए ना, ऐसे इनफाइनाइट सेट बन जाएंगे। अभी दिखाई तो कैसे बनेंगे चॉइसेस की। नाउ if dimension of V over F equal to n and cardinality of F equal to P to the power k, हमेशा ऐसी होती है फील्ड की, then cardinality of V F equal to P to the power n k exactly equal। ठीक है, इसी में एक if S equal to x1 x2 xr, r is less than or equal to n and S is Li, then cardinality of LS equal to P to the power nr। ये समझ में आ रहा है ये? क्योंकि जो x बनाओगे A1 x1 प्लस A2 x2 AR xr ऐसी बनेगा। अगर वो Li होता है तो हर लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा। A1 की कितनी चॉइस है? P पावर k R k। A1 के लिए P पावर k, A2 के लिए P पावर k, जो फील्ड में एलिमेंट है। कितने एलिमेंट फील्ड में? P पावर k, तो इसके लिए P पावर k चॉइस, इसके लिए P पावर k चॉइस एंड सो ऑन। कितनी बार? R टाइम, तो क्या दे देगा? P पावर है ना R इंटू k। यहां एग्जैक्टली वही आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू ओवर F इक्वल टू n। आपका क्वेश्चन जो आप कहते हैं बेसिस काउंट कर रहे थे जैसे हम लोग, वहां से आप बोल फाइंड इनफाइनाइट डायमेंशन V ओवर F इक्वल टू सपोज n, दिस विल एंड कार्डिनलिटी ऑफ F इज P टू द पावर k सपोज। तो ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ये क्या आएगा हमारा? P टू पावर n इंटू k। इसमें कुल कितने एलिमेंट है? n इंटू k। एक जीरो वेक्टर है, बाकी नॉन जीरो वेक्टर है। एक जीरो वेक्टर है, बाकी नॉन जीरो वेक्टर है। कंफर्म? अब आपको मान लीजिए सेट बनाना है Li वेक्टर का। देखिएगा, लेट S इक्वल टू x1 x2 xr, पहले ये सेट सच दैट S इज Li। हाउ मेनी सच सेट S? कुल कितने हैं इसमें? फाइनाइट एलिमेंट है, इसका कितने सबसेट होंगे? फाइनाइट सबसेट होंगे। उनमें से हम वो सबसेट ढूंढ रहे हैं जिनमें R Li वेक्टर हो। सिंपल क्वेश्चन समझ में आया ना? आवर क्वेश्चन इज टू काउंट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V
which has R element and that subset is Li as well. क्लियर हो गया? अब चलो इसको काउंट करते हैं कैसे. नाउ फॉर x1 हम सबके लिए चॉइस ही तो हमारे पास है. फॉर x1 p टू द पावर n के -1 चॉइसेस, कुछ भी चूज कर लो जीरो के अलावा. जीरो चूज नहीं कर सकते, पहला कुछ भी चूज कर लो. कर लिया? कोई भी, इतनी चॉइस आएंगी नहीं आएंगी. बट दूसरा जब आप चूज करोगे ना तो वो x1 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. हमें Li बनाना है. हम एक चूज कर लिया और आगे बढ़ते जाए पिछले वाले से जो इंडिपेंडेंट होते रहे. तो x2 के लिए जो चॉइस होंगी, x2 के लिए चॉइस क्या है? देन x2 शुड नॉट बी इक्वल टू अल्फा x1. तो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा. एक काम करते हैं, ऐसे कितने वेक्टर है वो इकट्ठे करके माइनस कर दे टोटल में से. अल्फा के लिए कितनी चॉइस है? p टू पावर k. तो क्या हो जाएगा? ये चॉइस आ गई x3. अब x3 को x1 और x2 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो x3 शुड नॉट बी इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा x2. इसके लिए कॉम्बिनेशन बना चाहिए. इसके लिए कितनी चॉइस है? p टू पावर k. इसके लिए भी p टू पावर k, p टू पावर 2k. ये सारे निकालने, जीरो भी उसी बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जीरो भी उसी चॉइस में आएगा ना. तो जो बच गए वो चॉइसेस बची मेरे पास. ये 3 तो ये 2, ये 2 तो ये 1, ये 1 तो ये 0. तो R इंडक्शन लगा दें. R should not be summation AI XI I vary from 1 to R minus 1. कितना जाएगा? p टू पावर n के माइनस p टू पावर R minus 1 k. ठीक है? पक्का? हाँ जी. ये जब माइनस कर रहे हो तो जीरो माइनस हो गया ना ऑलरेडी. जब सारे लीनियर कॉम्बिनेशन माइनस कर रहे हो तो उसमें जीरो भी तो आएगा. ये क्या है? अल्फा के पास कितनी चॉइस है? उसमें जीरो शामिल है ना. फील्ड का जीरो भी तो है ना फील्ड में, तो जीरो भी तो बाहर हो गया. क्लियर? तो बताओ एस कितने ढंग से बन सकता है? हाउ मेनी चॉइस टोटल? सो नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट एस इक्वल टू, कितने तरीके से ये सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? ये दिख गया हमको. इनका सबका मल्टी प्रोडक्ट. अच्छा, p पावर n के -1 इंटू p पावर n के -p पावर k एंड सो ऑन p पावर n के -p पावर r -1 इंटू k. ये आएगा. बट अभी भी गड़बड़ है. हो क्या रहा इसमें? ये टोटल नंबर ऑफ, हम सेट बना रहे हैं ना. सेट में तो ऑर्डरिंग होती नहीं है. सेट ही तो बना रहे हैं हम ना. नंबर ऑफ सबसेट्स ये काउंट कर रहे हैं. हुआ क्या होगा? इन्होंने x1 ना, सबसे पहले ये यहां बैठे इन्होंने आपने x1 ये चूज किया, ठीक है, और इन्होंने दूसरे ने x2 चूज कर लिया उसी में से. दोनों के भी इन्होंने x1 चूज किया. फिर जब ये आए तो इन्होंने x2 चूज कर लिया, इन्होंने x1. दोनों अभी भी इंडिपेंडेंट है. सेट तो वही बना, बट इसमें वो अलग अलग काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है. तो इनके अरेंजमेंट इसमें अलग अलग काउंट हो रहे हैं. तो इसलिए डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. r इफ तो टर्म है ना 1 to r, x1 x2 x1. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय द रेपिटेशन इज टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज, है ना. इंटरमीडिएट कितने वर्ड बना सकते हो अरेंजमेंट करके? इंटरमीडिएट से कितने वर्ड बनेंगे? इंटरमीडिएट में कितने लेटर? 12. एक्चुअली इंटरमीडिएट है वो. डिवाइड बाय तो 12 फैक्टोरियल. और जो जो रिपीटिशन दे रहे हैं आपको, तो INTER MEDIATE 3 E 2 T 2 I नहीं मिल रहे हैं. इनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए. हाई स्कूल में कितने लेटर है? 10 है ना. इंटरमीडिएट में 12. कितना सुंदर है. ठीक है. तो हाई स्कूल से कैसे वर्ड बन सकते हैं भाई? HIGH, तो वहां भी H हो गए. स्कूल में भी एक H है, डबल O है. तो 10 फैक्टोरियल अपॉन रेपिटेशन. ये फंडामेंटल थंब रूल है. टोटल पॉसिबिलिटीज इकट्ठी कर लीजिए, उनको अरेंज कर दीजिए एंड देन डिवाइड बाय द रेपिटेशंस.
तो मैंने टोटल पॉसिबिलिटी वो कर ली और इनके अरेंजमेंट को फिर से तो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ V विच आर Li एंड हैविंग कार्डिनलिटी, ठीक है, R। अच्छा, हाँ जी, ये तो ये x1 आपने चूज कर लिया, x2 आपको चूज करना है और x1 से इंडिपेंडेंट, तो क्या तरीका होना चाहिए? x1 हो गया सिलेक्ट, x1 से कितने एलिमेंट बना सकते हो आप? ओ x1 से कितने स्पैन होंगे? व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ L x1? तो अल्फा x1 यही तरीका है स्पैन करने का। x1 किसको स्पैन कर सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन? अल्फा इंटू x1 ना। अल्फा में कितनी चॉइस है? तो x1 से कितने स्पैन होंगे? p टू द पावर k। टोटल मेरे पास ये है, इसमें से ये वाले माइनस कर दूं जो x1 से बने थे। अब जो भी आ रहा है वो x1 से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? वो ये पहला वाला आ गया, ये दूसरा वाला। ऐसे अगले में भी लिखा था ना कि x3 अगर इनसे डिपेंड नहीं होना चाहता और x1 x2 सिलेक्ट हो चुके हैं तो वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनने वाले उनको माइनस कर दो, तो जो बाकी बचे उनमें से कोई चूज कर लो। यही तो चॉइसेस बची उसके लिए। ऐसे अगर x4 चूज कर रहे हो तो समेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। अगर x1 x2 x3 चूज हो चुके हैं तो इनसे कितने स्पैन होंगे? इसके लिए पी टू पावर k चॉइस, पी टू पावर k चॉइस, पी टू पावर पी टू पावर 3 के चॉइस। ये वो वेक्टर है जो x1 x2 x3 मिलके स्पैन करते हैं। अगर आपको इनसे इंडिपेंडेंट चाहिए तो इनसे बाहर जाओ, ठीक है, कंफर्म, तो अगले के लिए आ जाएगा एंड सो ऑन। और इसी से आपने बेसिस काउंट कर ली, आपने ध्यान नहीं दिया। नंबर ऑफ बेसिस का फॉर्मूला आ गया। इफ r इक्वल टू n इंप्लाइज s इज अ बेसिस। अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, कोई भी n वेक्टर्स का Li सेट होगा, उसको बेसिस होना पड़ेगा। कि अगर वो बेसिस नहीं बना, यानी किसी को स्पैन नहीं कर रहा है, यानी कोई एक उससे इंडिपेंडेंट है, तो n+1 इंडिपेंडेंट, जबकि डायमेंशन जो आती है दैट इज लार्जेस्ट Li सेट, ठीक है। तो ये r इक्वल टू n कर लो तो क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। सो नेक्स्ट फार्मूला, नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस क्या आ जाएगा? अब मैं ऐसे लिखूं चलेगा, प्रोडक्ट p टू द पावर nk माइनस p टू द पावर rk एंड r वेरी फ्रॉम 0 टू n-1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। एंड हेंस नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस इक्वल टू प्रोडक्ट पी पावर nk माइनस पी पावर rk, r वेरी फ्रॉम 0 टू। अब जो डिवाइड किया था उसको हटा दो, ऑर्डरिंग भी हो जाएगी। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेसिस, दिस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। अगर डायमेंशन n है तो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? अगर डायमेंशन n है तो बेसिस में कितने होंगे? n ही, वही तो डेफिनेशन वही है दादा, ऐसे मत करो। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन किससे डिफाइन हुई है? उसकी बेसिस की कार्डिनलिटी से, ठीक है। और जब बेसिस में n एलिमेंट है जिससे आपने इंप्लाई किया डायमेंशन n हो गई, सेकंड लेवल एनालिसिस ये कहता है any Li set of cardinality same as dimension has to be basis। क्योंकि अगर वो बेसिस नहीं बना, Li तो है ही, अगर बेसिस नहीं बना वो, तो यानी किसी ने किसी को स्पैन नहीं कर पा रहा, और कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए उसको। और जिसको स्पैन नहीं कर पा रहा वो इससे इंडिपेंडेंट हो गया। अगर उसको मैं इसमें रख दूं तो कितने Li हो गए? n+1, जबकि डायमेंशन इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विच वी कैन हैव Li सेट। क्लियर? तो जो भी सेट, ये S क्या है? Li ढूंढ रहे थे तो वो आया यहां पर।
अगर हम कितने में ढूंढ सकते हैं ना, n+1 करेंगे तो ये हमेशा LD हो जाएगा, स्पैन हो गया। तो n अगर चूज कर लूं तो n के लिए अगर हम कुछ भी हो सकता है, r=n पुट किया मैंने मान लीजिए, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो सबसेट जो Li है और कार्डिनलिटी n है। r=n से क्या मिला हमको, वो सबसेट जिनकी कार्डिनलिटी n है और वो Li भी है, बट ये तो बेसिस है। तो जब r=n पे जो भी काउंट करोगे क्या मिलेगा आपको, बेसिस मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास ऐसे टेबल बनाना, आपके लिए फार्मूला घर के लिए दे दे रहा हूं काम करने के लिए फुर्सत से। ऐसे डायमेंशन लिखना यहां पर और यहां पर फील्ड। ठीक है, जैसे डायमेंशन 3, 2, 1, ठीक, और यहां फील्ड लिखना Z2, Z3, बस 2, ज्यादा नहीं है, छोटे से ही है। आपको ये मैट्रिक्स फिल करनी है, मतलब 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर Z2, 2 डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर Z2, 1 डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर Z2, 3 डायमेंशन ओवर 3 है ना। ये क्या दे देंगे आपको, और अंदर सेल में क्या भरना है, नंबर ऑफ बेसिस। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस। और अच्छा ये लगेगा कि अगर ऐसे ऐसे कर लो, सुंदर पक्का, यहां टोटल बेसिस या ऑर्डर्ड बेसिस डिवाइड करके। ठीक है, जैसे Z3 ओवर, हाँ जी, यहां पर क्योंकि उस प्रोसेस मैंने पहला चूज किया फिर दूसरा चूज किया, ऑर्डरिंग फिक्स कर ली हमने, जबकि सेट तो वही आ रहा था ना। ये टोटल बेसिस है। इस प्रोसेस में मालूम x1, x2, x3 जरा सोचना, और x2, x3 और x1, x3 ऐसे हैं। इस प्रोसेस में ये दोनों अलग माने जा रहे हैं कि नहीं। इन्होंने x1, x2 है तो इंडिपेंडेंट, इन्होंने पहला वेक्टर x1 चूज किया, इन्होंने पहला वेक्टर x2 चूज किया। अब अगली बार जब इंडिपेंडेंट ढूंढ रहे थे, इन्होंने दूसरे चेंज कर लिए, बात तो वही हुई ना। तो इनको जितने ढंग से अरेंज कर रहे हो वो सारे इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं। हाँ, वो तो रिपीटेड हो रहे हैं वहां पर। हम अगर सेट काउंट कर रहे हैं तो सेट में रिपीटेशन होता नहीं है और ना ही ऑर्डरिंग होती है। तो टोटल सेट, नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट एस करेगा, तो उसमें डिवाइड करना नहीं करना पड़ेगा ये। और अगर हमें ऑर्डरिंग करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें से, तो वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, जैसे डायमेंशन मान लीजिए 3 हो वेक्टर स्पेस की और फील्ड भी Z3 हो, तो कुल कितने एलिमेंट होंगे वेक्टर स्पेस में, डायमेंशन 3 और फील्ड Z3 में कितने एलिमेंट हैं, 3। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट वेक्टर स्पेस, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड टू द पावर डायमेंशन। थंब रूल बना लीजिए, ये इसका कार्डिनलिटी ऑफ F टू द पावर डायमेंशन ऑफ V, ये किसी भी वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी का डायरेक्ट फार्मूला यही है। ठीक है, 27 पक्का, 27। ठीक है ना। इसमें एक जीरो वेक्टर है और एक बाकी 26 नॉन जीरो वेक्टर। हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम आए जरूरी नहीं है, कुछ सिंपल लेमन लैंग्वेज सोचना शुरू करो। मेरे पास 27 एलिमेंट टोटल हैं इस वेक्टर स्पेस में। किस वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, डायमेंशन 3 और फील्ड Z3, या कोई भी वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन 3 हो और फील्ड में 3 एलिमेंट हो। 27 टोटल एलिमेंट आएंगे। एक जीरो वेक्टर होगा, बाकी नॉन जीरो वेक्टर। अब देखिएगा, मैंने एक वेक्टर स्पेस ढूंढा जिसकी डायमेंशन 1 हो। मुझे वेक्टर स्पेस बनाना है, सब स्पेस बनाना है जिसकी डायमेंशन 1 है। हम क्या करेंगे, एक नॉन जीरो वेक्टर लेंगे और उससे स्पैन करेंगे। वो अपने आप क्या देगा, डायमेंशन 1 का देगा, नहीं देगा। सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन 1, व्हाट यू नीड, any non-zero vector you choose, any non-zero vector you choose, it will span a vector space of dimension 1. You choose any two Li set, Li vectors, any two Li vectors, mix set S, it is Li x1, x2. Now, when it will span a vector space, its dimension will be 2, because ये बेसिस बन जाएगा, 2 है, दोनों Li है और Ls equal to W, तो यही बेसिस हो गया ना, डायमेंशन क्या हो गई 2। R डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आप R Li वेक्टर चूज करते हो और वो स्पैन कर देता है।
ये जो नंबर आए हैं ना, ये जो नंबर आया, मान लीजिए ये नंबर आ गया m, तो इसका मतलब मेरे पास m ऐसे सेट्स हैं S1 S2 एंड सो ऑन Sm जिनकी कार्डिनलिटी क्या है r, और सारे कैसे हैं li। तो LS1 LS2 LS3 सब क्या हो रहे हैं, वेक्टर स्पेस बन रहे हैं। किस डायमेंशन के, r डायमेंशन के। अब ये नहीं पता कि LS1 LS2 सेम है कि डिफरेंट है, बट LS1 LS2 LS3 अगर ये m है, इसको समझ रहे हो ना, ये m मतलब ये क्या नंबर आया, नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट S। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास S1 S2 एंड Sm हो सकता है m इक्वल टू 20 लाख हो, बट आगे आना कुछ ना कुछ। तो LS1 क्या है, LS1 इज अ वेक्टर स्पेस जो किससे स्पैन हुआ है, S1 से, और S1 खुद कैसा है, Li। कोई भी Li सेट जब स्पैन करता है तो वो बेसिस बन जाता है, तो S1 इज बेसिस, और उसमें जितने एलिमेंट वही डायमेंशन, तो LS1 की डायमेंशन R, LS2 की R एंड सो ऑन। मुझे ये नहीं पता LS1 LS2 सब डिफरेंट है कि सेम है। अगर मुझे मालूम चल जाए इसमें कितने डिस्टिंक्ट हैं, तो मैंने एक्चुअली क्या काउंट कर लिया, नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन R। दैट विल गिव अस आइडिया टू काउंट नंबर ऑफ सब स्पेस। बट एक तो ये मेथड हुआ, एक ऐसे ही सोच के देखो, 26 एलिमेंट का सेट लिया मैंने, 27 एलिमेंट इनफैक्ट, डायमेंशन 3 और फील्ड Z3, उसमें से एक वेक्टर चूज कर रहा हूं अदर देन 0, S1 X। X इज नॉन जीरो मेंबर ऑफ V, और V में कितने एलिमेंट टोटल, 27। ठीक है, अब इससे बनाओ LS1, देखना 0 X1 2 X1 यही बनेगा, क्योंकि फील्ड मेरी क्या है 0 1 2। पक्का कितने एलिमेंट होंगे, ये Li है कि नहीं है, और इसको स्पैन कर देगा नहीं कर देगा, तो इसके पास दो बेसिस है, एक ये और एक ये। अगर हमको नया ढूंढना है ना, तो इन दोनों के अलावा ढूंढना चाहिए। ये एक सब स्पेस बन गया ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 1 का डायमेंशन 1 का बन गया, डायमेंशन 1 का सब स्पेस। अगर एक और सब स्पेस बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इन दो के अलावा ढूंढना चाहिए हमको, तभी तो बनेगा। मेरे पास कुल कितने एलिमेंट है, 27। एक तो हट गया 0, 0 बनाएगा नहीं, सब में 0 तो आने ही आना है, हर वेक्टर्स में 0 तो आएगी आएगा। अगर डायमेंशन 1 का सब स्पेस और बनाना है, तो इन दोनों में से कुछ भी चूज करो, बार बार यही बनेगा। अगर नया सब स्पेस चाहिए, तो बाकी जो 24 बचे हैं ना, उनमें से एक लो, वो बनाएगा नया, बट वो एक और खर्च करेगा। अगर व्हाइट, कितने खर्च हो चुके हैं इसमें से, 3 एक्चुअली, और 0 तो बार बार लौट के 2 खर्च हो चुके हैं, कितने बचे 24, उसमें से एक चूज करो Y1, तो Y0 Y1 2 Y1, फिर 2 खर्च हो गए, ऐसे 2 खर्च होंगे, कितने सब स्पेस आएंगे, टोटल 13 सब स्पेस ऑफ डायमेंशन 1 ऑफ दिस वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर Z3। ये उसका ऐसा ही क्वेश्चन है पीछे, फार्मूले से भी हम निकालेंगे, फार्मूले होंगे, बट हर एक के लिए फार्मूला थोड़ी चाहिए। डायमेंशन 2 करते तो डायमेंशन 3 है ना वेक्टर स्पेस की, 1 का डायमेंशन 1 का सब स्पेस बन सकता है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 0 का बन सकता है, 4 ही तो पॉसिबिलिटी है, 0 का 1, 3 का 1 वो खुद, बाकी जो होंगे कौन को होंगे 1 के और 2 के। आप देखोगे ना, जब ये 2 यहां 1 चूज कर लिया, तो 2 बाकी अपने आप भी तो हो गए। आप बेसिस उठाओ, जितनी बेसिस बनेगी, हर बेसिस को एक यहां निकाले, 2 अपने आप तो हट गए ना, डायमेंशन 2 के भी 13 ही बनेंगे। इस केस में चांस की बात ये है, डायमेंशन 1 के 13 बन रहे हैं ना, अब देखो डायमेंशन 2 के भी 13 ही बननी चाहिए, क्योंकि पूरे बेसिस में 3 ही एलिमेंट तो होने हैं, डायमेंशन 3 बेसिस की, तो एक बेसिस में कितने एलिमेंट, 3, उसमें से एक निकालोगे, 2 भी तो बेसिस बना देंगे अपने आप, वो डायमेंशन 2 वाली, तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी। मतलब NCR इक्वल टू NC(n-R)। जब मैं इसमें से डायमेंशन 1 के 13 मिले ही नहीं मिले, 13 कैसे मिले, अगर मैंने बनाना है डायमेंशन 1 का, तो एक वेक्टर से स्पैन होगा वो, इसमें कितने हैं 27, मैं एक चूज करूं, वो नॉन जीरो, मान लीजिए मैंने x चूज कर लिया, x, इस x से क्या बन गया 0 x, ये तो बन गया ना। अगर इससे स्पैन करूंगा तब भी ये बनेगा। अभी इसमें कितने हैं 24 0 के अलावा। अब अगर नया चाहिए, ये मेरा W1 बना है, अगर नया चाहिए तो वो वेक्टर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, तो वो जो W2 आएगा LS2,
वो 0y और 2y, और ये दोनों इससे डिफरेंट ही होंगे क्योंकि एक भी कॉमन हो गया तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसको स्पेन कर रहा है, ये भी इसको स्पेन कर रहा है, दोनों स्पेन कर रहे हैं, एक भी कॉमन हो गया W1 इक्वल टू W2, उसमें 2 खर्च हो गए, तो कुल 26 एलिमेंट है, एक में 2-2 खर्च हो रहे हैं, तो फिर वो 13 ही देंगे आपको ना। बट इन एनी वे यू हैव फार्मूला टू काउंट सब स्पेसेस ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, यू हैव फार्मूला टू काउंट बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस एंड बेसिस ऑफ सब स्पेसेस। किसी बेसिस, सब स्पेस कितनी बेसिस है वहां से निकालेंगे। चलिए मिलते हैं, समझ में आ रहा है ये? इधर से क्वेश्चन बनता है।